Thank you, Gaurav Bhai, for having me here. To Ved sir also, and to Avinav ji, who's we are missing right now. Dosto, I want to make this session very engaging, and because the idea is, the more we discuss, I think a lot of people on this topic have a lot of questions. So obviously, I will be giving you in next 1 hour, 1.5 hours, the download of the opportunities. But it is very, very important that we make this session an engaging one so that the questions that you have are properly addressed. As Gaurav Bhai also mentioned, I was planning to come next week to India, but because this event was taking place, he requested me to come and participate and be with you all. So thank you for this opportunity, Gaurav Bhai. Friends, the topic today that I'm going to talk on is emerging career opportunities for Indian CAs in Europe. Career opportunities के साथ साथ मैंने इसमें business opportunities भी कर दिए because आज की डेट में career के साथ साथ जहां हम लोग professional career की बात करते हैं वहां आज chartered accountants are also emerging as entrepreneurs और वहां business opportunities भी उनके लिए Indian context में जब हम Europe की बात करते हैं तो बहुत सारी opportunities निकल के आती हैं. So let me first quickly give you a glance of my journey in just 1 minute of what has mobilized me into Europe, particularly into Netherlands and then largely into Europe. मैं 2002 में क्वालिफाई करने के बाद 2005 में नेदरलैंड्स गया था पढ़ने, LLM करने गया था और वहाँ से I joined PwC because before I wanted to come back to India, idea was that I should take an experience of 1 year before I come back to India and practice international tax law. So I joined PwC and PwC that time hired me on India desk. जो बोलता थे ये लोग इन्होंने 20 साल पहले यूरोप में स्टार्ट की थी वेव कि हमारे पास एक डेडिकेटेड इंडिया डेस्क होनी चाहिए. उस इंडिया डेस्क का मकसद ये था कि जो इंडियन कंपनीज यूरोप आना चाह रही हैं, नेदरलैंड्स आना चाह रही हैं या यूरोपियन कंपनीज इंडिया आना चाह रही हैं वो उस डेस्क के माध्यम से केटर की जाएंगी. क्योंकि ये टॉपिक करियर और बिजनेस का है तो मैं प्योरली जो डिस्कशन रहेगा नेक्स्ट 1 घंटे का वो करियर और बिजनेस के ऊपर ही मैं बात करूंगा. तो 2005 में जब मैंने PwC में इंडिया डेस्क के ऊपर काम करना चालू किया तो नेदरलैंड्स के बारे में लोग इंडिया के अंदर हार्डली जानते थे. मुश्किल से 20 इंडियन कंपनीज थी जो नेदरलैंड्स में स्टैब्लिश थी और मुश्किल से 20 यूरोपियन कंपनी नेदरलैंड्स कंपनी होगी जो इंडिया में स्टैब्लिश थी. और टोटल ट्रेड बिटवीन द नेदरलैंड्स एंड इंडिया इन 2005 वाज $1 billion और 1 billion euros. उस टाइम ऑलमोस्ट सेम करेंसी लेवल्स थे. इन लास्ट 20 years, फ्रेंड्स, आई हैव ओनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बिल्डिंग बिजनेस बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स एंड बिल्डिंग बिजनेस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. टुडे एज वी स्पीक, मैं अगर सिर्फ नेदरलैंड्स और इंडिया की बात करूं तो देयर आर over 800 companies operating in India-Netherlands corridor, and the business today between India and Netherlands stands at 28 billion euros. So you can imagine that business has gone from 1 billion to 28 billion. और ये तब है जब FTA इंडिया का अभी साइन नहीं हुआ है EU के साथ. So ये लैंड के बात करते हैं नेदरलैंड्स की. अब मैं बात आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूं जो यूरोप का इन्वेस्टमेंट है, जो यूरोप की कंपनी आज जो इंडियन कंपनीज विच आर इन्वेस्टिंग इनटू यूरोप. दिस गिव यू द एग्जैक्ट मैपिंग ऑफ हाउ बिजनेसेस आर ट्रांसफॉर्मिंग टुडे बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. ये तकरीबन 3-4 साल का डेटा है. तो व्हाट आई हैव शोन इज कि यूरोप इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर इंडिया. एज यू ऑल मे नो कि EU is the largest trading bloc for business so far as trade with India is concerned, followed with US. So EU, India, EU-US, US-India and India-China. ये top 3 trading bloc partners हैं इंडिया के साथ. और उस EU के अंदर भी as you know, यूरोपियन यूनियन में आज 28-29 कंट्रीज आते हैं. Britain has been out of it, as we all know, due to Brexit. So now you have a EU and you have a UK. So the Europe is divided into 2 segments. UK अलग है,
यूरोप अलग है, यूरोपियन यूनियन अलग है। आपको बिजनेस भी करना है, कंपनीज को बिजनेस भी करना है, तो पहले कंपनीज क्या करती थी, हमने सिर्फ एक यूके स्टैब्लिश कर लिया और उससे पूरी मार्केट एक एक्सेस हो सकती थी, बिकॉज मार्केट एक्सेस वॉज ईजी फॉर कंपनीज गोइंग आउट फ्रॉम इंडिया इनटू यूके। बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक्जिट सिचुएशन, with being in UK, you cannot operate into Germany or Netherlands or France because VAT challenges होते हैं, वीज़ा के challenges होते हैं, multiple level पे challenges होते हैं। तो आप अगर EU की बात करें purely, और obviously UK is important partner for India, very important partner। आप देखें जो channelize हुआ है business में, उसमें number one country that has emerged as the largest trading partner for India is Netherlands, followed by Germany, followed by UK, followed by Switzerland, Belgium, Italy and France। तो ये क्योंकि मेन कंट्रीज हैं यूरोप में इंडिया के लिए, यही कंट्रीजों में अपॉर्चुनिटीज हैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, बिकॉज इन्हीं कंट्रीज में हम आज बिजनेस सबसे ज्यादा मोबिलाइज कर रहे हैं सो फार एज इंडिया एंड यूरोप इज कंसर्न। नाउ काफी लोग पूछते हैं कि व्हाई नेदरलैंड्स इज सो इंपॉर्टेंट, या व्हाई नेदरलैंड्स इज ऑन द टॉप ब्लॉक। उसका सिंपल कारण यह है कि नेदरलैंड्स हैज टू लार्जेस्ट पोर्ट्स ऑफ यूरोप, वन इज द पोर्ट ऑफ रॉटरडैम एंड द सेकंड वन इज द पोर्ट ऑफ एम्स्टर्डम। तो अगर इंडियन कंपनीज जब अपना यूरोप में एस्टैब्लिश करती हैं, वो ये कहते हैं साहब हमें जर्मनी में माल बेचना है, जर्मन टैक्स लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यहाँ की टैक्स लेजिस्लेशन प्लस सिविल कोड, कंपनी लॉ कोड आर वेरी कॉम्प्लेक्स, are very difficult also, and the authorities are not very open and receptive, whereas Netherlands आप देखेंगे authorities are very open, authorities are very receptive। इनफैक्ट वहाँ टैक्स रूलिंग्स आपको एडवांस में दी जाती है, जो इंडिया में भी कॉन्सेप्ट आया एडवांस रूलिंग्स का, वो सब कंट्री लाइक नेदरलैंड से आया है कि हाउ टू मेक मोर सिंपलिस्टिक प्रोसेस इन डूइंग द बिजनेस एंड क्रिएटिंग द कम्युनिटी फॉर द entrepreneurs। So because of all that reason, Netherlands is the gateway today for Indian companies entering in the European market। So जो 20 साल से मैंने भी ट्रेंड देखा है, आप कोई भी इंडियन कंपनी उठा लीजिए, आप रिलायंस लेंगे, अदानी लेंगे, ITC इन्फोटेक लेंगे, गोदरेज लेंगे, इंडियन ऑयल लेंगे, ONGC की जितने भी इंटरनेशनल ऑयल ब्लॉक्स लेंगे, भारत पेट्रोलियम, आई मीन यू नेम अ कंपनी, उनका यूरोपियन हेडक्वार्टर्स या ग्लोबल हेडक्वार्टर्स आपको आउट ऑफ इंडिया नेदरलैंड्स में ही मिलेगा। और बिकॉज नेदरलैंड्स में मिलेगा, नेदरलैंड्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है और इसलिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नेदरलैंड संबंधित हैं। आज आप जर्मनी की बात करें, जर्मनी इज अ ह्यूज प्लेयर फॉर इंडिया। आज जर्मनी की तकरीबन 2000 कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं। तो अगेन मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करता हूं, तो आज आप सभी लोग आई एम श्योर खुद की प्रैक्टिसेस होगी। यहाँ कितने लोग बाय द वे प्रैक्टिस में हैं? हाउ मेनी पीपल आर इन प्रैक्टिस? वो आई सी मेजॉरिटी ऑफ द साइज इज इन प्रैक्टिस। वाओ, सो अ ह्यूज डील ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए है इन कंपनीज की जिनका बिजनेसेस आज इंडिया में है। अच्छा, कई आपकी जो जितनी फर्म्स आपने बताया भी, इनमें से आपके क्या क्लाइंट्स हैं यूरोप में, या आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जहां आप आउटसाइड इंडिया डील करते हैं? ऐसी कौन सी सीए फर्म्स हैं यहाँ पर, ऐसे कौन से प्रैक्टिशनर्स हैं? यू कैन रेज हैंड्स। पीपल हु आर हेल्पिंग यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया और हेल्पिंग इंडियन कंपनीज इन टू यूरोप। इनबाउंड है आप, आउटबाउंड है सर आपका? इनबाउंड है, आउटबाउंड अभी किसी का नहीं है यहाँ पर। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ईजिली अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है, क्योंकि आज जो भी क्लाइंट्स आपके इंडिया के हैं, 50 करोड़ की टर्नओवर के, 100 करोड़ की टर्नओवर के, 500 करोड़ की टर्नओवर के, उन सभी लोगों को आज यूएस जाना है, यूरोप जाना है, और इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम जाएं कैसे। तो वहां मुझे लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज वाइल वी आर ओनली कंसंट्रेटेड ऑन डूइंग अकाउंटिंग, टैक्स फाइलिंग्स एंड ऑडिट ऑफ द क्लाइंट्स, बट अगर हम क्लाइंट को ये भी बताएं कि भाई आज जो कंपनीज हैं, आप जिस हिसाब से बाहर जा रही हैं, कैसे हम लोग उसको मोबिलाइज कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए खुल सकता है ऐसे क्लाइंट्स को ग्लोबल लेके जाने में। सो ये कौन कौन से कंट्रीज हो सकते हैं? अगर आप यूरोप की बात करें तो नेदरलैंड, जर्मनी, यूके, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इटली और फ्रांस। तो आज आप बिजनेस देखें इंडिया और ईयू का,
ये 190 ऑलमोस्ट, मैं बात करता हूँ 190 टू 200 बिलियन के आसपास का आज बिजनेस है। और ये बिजनेस, दिस विल टच अ फिगर ऑफ 500 इन नेक्स्ट 3 to 4 years। इंडिया EU FTA का साइन, जो FTA है, दैट इज अंडर प्रोसेस, एंड वंस दैट इज स्टेबलाइज्ड एंड वंस इट इज साइन, ये 500 बिलियन का फिगर बहुत क्विकली रीच करेगा। और इसमें क्या होगा, नॉट ओनली गुड्स बट आपके जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं। और वो सर्विसेज क्या हैं? आज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर एग्जांपल। आज सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो इंडिया से हम लोग यूरोप में देते हैं वो है IT सर्विसेज, बट आज एक लार्ज साइजेबल अपॉर्चुनिटी बन रही है फॉर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू यूरोपियन कंपनीज। आज हम बात करते हैं यूरोप के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संख्या, कोई एक नंबर गैस कर सकता है? हाउ मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वुड बी देयर इन यूरोप? कैन यू गैस, कैन यू मेक अ गैस, हाउ मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? 6,000, आपने बोला 5,000, एनी मोर केसेस? 3,000। सो आज जब मैं 10 साल पुराना लैंडस्केप बात करता हूं, सिर्फ यूके के, नेदरलैंड्स में सिर्फ यूके के आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहीं नहीं मिलते थे, और यूके में भी 200-500 का नंबर था। आज की डेट में इन अ कंट्री लाइक यूके वी हैव मोर देन 1,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नेदरलैंड्स, जब मैंने चैप्टर चालू किया था नेदरलैंड्स के अंदर, मुझे चैप्टर फॉर्मेशन के लिए 20 CA चाहिए थे, मुझे 20 CA नहीं मिले थे। 2017 की बात कर रहा हूं मैं, 2017। आज नेदरलैंड्स में ही खुद 400 से 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आज जो पर्सनली मेरा नंबर होगा वो दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 4,000 to 7,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आप लोगों ने मोर और लेस गेस सही किया है, एंड इट्स अ ह्यूज नंबर। और ये जो आउटफ्लो हुआ है ये पिछले 5 या 6 बरस में हुआ है, और उसके लिए बहुत बड़ा रोल हमारे CA इंस्टीट्यूट ने भी प्ले किया है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने सभी जगह अपनी शाखाएं खोली हैं, सभी कंट्री में अपने ऑफिस इस्टेब्लिश किए हैं। तो आप लोगों को पता होगा CA, while it's a examining body, governing body, it's doing a lot for the professional, but today we are also playing an active role for the trade association, for enabling the companies in doing businesses. So मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप जब यूरोप के लिए इंडिया की बिजनेस की बात करें तो उसमें ऑलवेज 2-fold देखें। एक, क्या इनबाउंड अपॉर्चुनिटीज हैं, और क्या एक आउटबाउंड अपॉर्चुनिटीज हैं। इनबाउंड हो गई जो यूरोपियन कंपनीज इंडिया आ रही हैं, और आउटबाउंड हो गई जो आपके क्लाइंट्स हैं जिनको यूरोप में जाना है। से यार यूरोप आदमी क्यों जाता है? बिकॉज हाई मार्जिन के लिए जाता है, सोफेस्टिकेटेड, आपको जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको सोफेस्टिकेटेड डिसेंट मार्जिन मिल जाते हैं। आज इंडिया में आपको अगर एक रेट आप माल बेचोगे 100 रुपये के एक यूनिट पर, शायद वो आपका माल 300 रुपये पर यूनिट बिक सकता है, सब्जेक्ट टू क्वालिटी एंड एवरीथिंग। बट आज कई बिजनेसमैनों को आइडिया नहीं है हम कैसे करें। तो क्योंकि आपके जो करंट बिजनेसमैन है, आई थिंक यू ऑल्सो एक्ट एज अ बिजनेस एडवाइजर टू देम while you are a chartered accountant, and I think time has come, friends. I know a lot of senior professionals are sitting here. Time has come where we have to raise up our bar from not only being a chartered accountant handling accounting tax, but also be a business advisor to our client. Or Europe is right time, right place, and with this India EU FTA coming into play, lot of business. I mean, समझिए अब 200 बिलियन का अगर 500 बिलियन होगा, just imagine the kind of opportunity it will create for all of us. And we are the people who are rightly suited. और कोई इसको कैप्चर नहीं करेगा, अपॉर्चुनिटी इसको कोई सीज नहीं कर सकता है, ना ही इसको इंजीनियर सीज कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, वकील टू सम एक्सटेंट कवर कर सकते हैं इसको, बट सबसे ज़्यादा जो उसको कैप्चर कर सकते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. तो यूरोप इन अपॉर्चुनिटी इन यूरोप इज ह्यूज, मैसिव, ट्रिमेंडस. अब देखेंगे इनफैक्ट हमारी ट्रेड पोजीशन भी बहुत अच्छी है. इंडियन एक्सपोर्ट की या इंडियन इंपोर्ट की बात करेंगे तो आप देखें 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है. तो अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूं तो मैं 300-400 बिलियन तो वैसे ही यूरोप के साथ बिजनेस 5 साल में टच कर दूंगा. और अगर मेरा इंडिया EU FTA हो गया तो वो 500 से 700 बिलियन, हम ऑलमोस्ट 10 साल की बात करें तो पोटेंशियली 1 ट्रिलियन का बिजनेस होगा इंडिया यूरोप का सिर्फ. तो जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिनका मैंडेट है कि इंडिया को हम टॉप 3 में लेके आना है, उसमें इंडिया यूरोप लाइन इज गोइंग टू बी अ मेजर गेम चेंजर एंड अ इनेबलर इन रीचिंग टू दैट पॉइंट. आपके कोई भी सवाल किसी भी टाइम पर हैं, यू कैन रेज हैंड बिकॉज आई वांट टू मेक इट
as engaging discussion as possible and as lively discussion as possible. अब जो यूरोप की बात करते हैं, why Europe is so fundamentally important and essential for India, Indian companies, and therefore Indian chartered accountants. One, because Europe is an economic powerhouse. आज आप यूरोप के कंट्रीज देखें, while there might be an inflation issue, certain countries might be going through inflation issue, but by and large, European economy is doing phenomenally well. आप जर्मनी की बात करो, फ्रांस की बात करो, इटली की बात करो, नेदरलैंड्स की बात करो, नॉर्वे, स्वीडन, इन कंट्रीज की बात करो, दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल. आपको सभी को पता होगा कि सबसे बड़े जो पेंशन फंड्स हैं, countries like Norway, countries like Sweden, countries like Netherlands, they are massive investors in India. Massive investors in India. So it's a very important economic powerhouse, and therefore for that reason, India के लिए बहुत important country है, क्योंकि India टेक्नोलॉजी के साथ साथ कैपिटल भी लेके आता है यूरोप से. सेकंड, कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन. नाउ जैसा मैंने कहा कि आपको जब यूरोप की बात करते हैं तो आपको इनबाउंड भी देखना है, आउटबाउंड भी देखना है. तो यहाँ पर जो मेरे दोस्त लोग यूरोप में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यूरोप जाके जॉब्स करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो टू फोल्ड अपॉर्चुनिटीज हैं. एक प्रोफेशनल्स के लिए जिनकी फर्म्स हैं, और एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनको जॉब करनी है. तो आज आदमी ऑलवेज ये सवाल पूछता है, साहब अगर मैं यूरोप जाऊं तो मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो टुडे द आंसर इज यस, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स इन यूरोप. मतलब ह्यूज भी अंडर स्टेटमेंट है. अगर मैं बोलूं कि ह्यूज शॉर्टेज है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की यूरोप में, वो शायद अंडर स्टेटमेंट होगा, क्योंकि आज जो रिक्वायरमेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वो हैविली मैसिव है. और होता क्या है कि इन कंट्रीज में, यूके, नेदरलैंड, जर्मनी, यहाँ सीए का कोर्स की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है. 6 से 7 साल आमतौर पर लगते हैं आपको लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए. तो आप अगर आज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आज आपके पास अच्छा एक्सपोजर है, आज आपने ग्लोबल आईएफआरएस सीखा है, इंटरनेशनल टैक्स सीखा है, ट्रांसफर प्राइसिंग सीखा है, तो यूरोप ऑफर्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. या आपके क्लाइंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, अगेन ऑफर्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू. क्यों? बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन. आपका एक, जब आप लोग इंडिया में प्रैक्टिस करते हो तो आई एम श्योर आपने अपना आवरली रेट निकाला होगा, 2,000 रुपये प्रति घंटा, 3,000 रुपये प्रति घंटा. कोई सीनियर लोग 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 25-50,000 रुपये तक जा सकते हैं. तो आई एम श्योर ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज आवर आवरली रेट दैट वी आर चार्जिंग टू क्लाइंट. नाउ द मोमेंट आप उस 2-3, आमतौर पर मैंने जो देखा है वो इंडिया में 2, 3, 4, 5, 6,000 रुपये होता है. The moment you go to Europe, the hourly rates game changer. क्योंकि वहाँ hourly rate 100, 120, 200, इनफैक्ट वहाँ पार्टनर्स जो नॉर्मल, आमतौर पे एक नॉर्मल फर्म का भी पार्टनर होगा वो 200-300 यूरो आमतौर पे चार्ज कर सकता है प्रति घंटा. सो इफ दैट इज द काइंड ऑफ गैप विच यू कैन चार्ज इन यूरोप vis-a-vis in India, obviously you would want to then work for Indian clients. Going to Europe or working for Europe. सर आपका क्वेश्चन था नहीं? ओके. सो बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ रेम्यूनरेशन, आज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इंडिया में स्टार्टिंग में 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख की आपको जॉब मिलती है. बट अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको ठीक एक्सपोजर है, तो आप यूरोप में जाके 35-40 हज़ार यूरो, 45,000 यूरो तक की सैलरी आराम से ले सकते हैं. और वो जो डिफरेंशियल है, 40,000 की यूरो की सैलरी आप कंपेयर करते हैं, आज ऑलमोस्ट 93-94 का यूरो है. वी आर टॉकिंग ऑफ 35-40 लाख रुपीज ऑफ स्टार्टिंग सैलरी. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you could easily reach 80,000, 90,000 euros. 5 से 6 साल का आप एक्सपीरियंस लेके चलना, तो प्लस अ गुड लिविंग. सो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द हाई कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन, यूरोप बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक मार्केट. उसके बाद आज सभी जगह यूरोप में ईजिंग रेगुलेशंस हो रहे हैं. पहले क्या होता था कि आज मोबिलिटी फ्रॉम इंडिया टू यूरोप वॉज ऑलवेज चैलेंजिंग. कोई वीजा नहीं देता था. नेदरलैंड चले जाओ, यूके चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, अब सब जगह द मैसिव प्रॉब्लम वाज वीजास, बिकॉज इन लोगों को अपना इमिग्रेशन कंट्रोल और चैनलाइज रखना है. बट बिकॉज आज इतनी बड़ी शॉर्टेज है, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है. आज आप इनकी पॉपुलेशन देखें, पूरे यूरोप के अंदर 300-350 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है. बट टुडे दे डोंट हैव सफिशिएंट अकाउंटेंट्स ऑल अक्रॉस. आप यूके से चालू करो, आयरलैंड की बात करो, लक्समबर्ग की बात करो, जर्मनी की बात करो, स्पेन की बात करो, up to the countries like Romania, Poland,
बुल्गारिया, इन कंट्रीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हैवी शॉर्टेज है, बिकॉज इकोनॉमीज बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर गई, पॉपुलेशन उतनी फास्ट पेस पे ग्रो नहीं की, और पॉपुलेशन में भी अकाउंटेंट्स उस पेस पे ग्रो नहीं किए। तो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज डेफिसिट बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटेंट्स, देयर इज अ बिग गैप टुडे। आज क्या हो रहा है कि कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका आर प्लेइंग अ रोल कि वो अपने अकाउंटेंट्सों को प्लेस करते हैं। आज हमारे सीए इंस्टीट्यूट का मैंडेट है अंडर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाइयों और बहनों को आउटसाइड इंडिया भेजना है। आज सीए इंस्टीट्यूट हैज़ बीन गिवन द सेम अकॉर्ड ऑफ व्हाट अ फिक्की और एन एसोचैम और अ सीआईआई इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग so far as the trading is concerned, so far as giving certifications are concerned. ये 2 साल पहले हुआ था, which has put ICAI on a completely different pedestal. And because it has been done, obviously we as a chartered accountants have also been benefited by that. But issue ये है कि हम लोगों को चीज़ पता नहीं है कि how chartered accountants can really engagingly and actively play a role in enhancing the business cooperation and thus also enhancing their own chances of making money on the European market. तो easing regulation, फिर बात करते हैं यूनिफाइड मार्केट स्टैंडर्ड्स। आप जब यूरोप में जाते हो, बिकॉज यूरोपियन यूनियन एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, जैसे आप देखेंगे वहाँ वीएटी है, तो वीएटी पूरा हार्मोनाइज है यूरोप का। आज बेशक 28-29 कंट्रीज आते हैं यूरोपियन यूनियन में, बट उनका ईयू अक्रॉस वीएटी हार्मोनाइज है। तो अगर आपने ईयू वीएटी पढ़ लिया तो बेसिकली आपने 28-29 कंट्रीज की नॉलेज हासिल कर ली। ऐसा नहीं है कि आपको जर्मनी का वीएटी अलग याद करना पड़ेगा, स्पेन का अलग याद करना, क्योंकि कई बार वो मिसकंसेप्शन होता है कि यार मैं अगर यूरोप चला जाता हूँ, यूरोप में प्रैक्टिस करने की सोचता हूँ, कुछ भी करने की सोचता हूँ, तो मुझे 30 देशों का सिस्टम याद करना पड़ेगा। तो वीएटी हो गया, कस्टम्स हो गया, ये सब हार्मोनाइज्ड है। एंड ऑल्सो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस। और आप जितने भी आज देखेंगे जो ओईसीडी की गाइडलाइंस हैं टैक्स के ऊपर, ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर, आज हम बैप्स की बात करते हैं, पिलर 1 पिलर 2 की बात करते हैं, ये सब यूनिफाइड हो गया है आज की डेट में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दिस यूनिफाइड मार्केट स्टैंडर्ड्स इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू प्रैक्टिस इन यूरोपियन रीजन। देन जैसा मैंने कहा, हाँ जी, मैं दे रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली। सर होता क्या है कि आज आई नो, तो वो भी मैं बताता हूं। सो ये आपके जो सब सारे सवाल हैं, इसमें मैं आगे जैसे चलूंगा अपनी स्लाइड्स में, इन सभी क्वेश्चंस को आपको आंसर मिल जाएंगे स्लाइड्स के अंदर। सो आज जो मैंने बताया हाई डिमांड ऑफ प्रोफेशनल्स क्यों है, आज ऐसा मतलब ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया वहाँ 5 साल में कि एकदम से स्पॉट आ गई है हाई डिमांड फॉर प्रोफेशनल्स। और वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ दिस गैप इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी vis-a-vis the lack of growth in the infrastructure of accountants has led to this. Yes. Yes, sir. I welcome Honorable Chairman of NIRC, C. Abhin Agarwal ji. I request him to kindly join us on the dais. Let's have a round of applause for Abhinav bhai. So I will take up all these questions. I will take up all these questions. And now the very, very important thing is digital transformation. आज जैसा हमको मालूम है, आज हमारे इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट सर हैं इंडिया में, रंजीत जी, उनका भी फोकस ये है कि हम एआई को कैसे बढ़ावा दें आईसीआई में। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब इंस्टीट्यूट हैज़ गॉन सो अग्रेसिव ऑन इंश्योरिंग कि हम लोग, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट बी लेफ्ट आउट or be left behind on the AI subject. So today this has become a massive subject कि आज जो भी हम कर रहे हैं उसमें AI का यूज़ आ गया है। आज हम यूरोप में जाते हैं, हमें लगता है कि यूरोप हमसे बहुत आगे है। कई बार मिथ होते हैं कि यार यूरोप में आज AI बेस्ड अकाउंटिंग होगी, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आज जब मैंने अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग की प्रैक्टिस चालू की थी 2012 में, मैं कई यूरोपियन फर्म्स के पास गया था और जिनके पास भी गया उन्होंने कहा विकास जी हमें अकाउंटेंट्स की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तो जो स्कैनिंग मशीन्स हैं वही अकाउंटिंग का काम कर देती हैं। तो एक टाइम वो था, बट आज मैं देखता हूं कि बाय एंड लार्ज अकाउंटिंग सिस्टम्स पर जा रही है। तो आज जो हमारा रोल है वो भी इवॉल्व हो गया है। आज पहले हम लोग अकाउंटिंग करते थे,
उसके बाद हम लोग टैक्स फाइलिंग करते थे और उसके बाद ऑडिट करते थे। ये 3 स्टेप्स में हम लोग काम करते थे। आज क्या हो गया है, अकाउंटिंग ERP बेस्ड हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सिस्टम्स लेके आ गए हो। और एज वी विल गो अलोंग द वे, इन नेक्स्ट 3, 4, 5 years अकाउंटिंग विल बी कंप्लीटली मशीन बेस्ड। आपके सिस्टम्स, इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ। अब यूरोप में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर आपने जो ले रखा है बैंक इसका, अकाउंटिंग का, उसमें आप डायरेक्ट लिंकेज लगा देते हो बैंक स्टेटमेंट की। आप उसमें क्या करते हो, उसमें आप आपके जो वेंडर्स हैं, जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको स्कैन से आप एक बता देते हो, अगर ये इनवॉइस आएगा इस बार कोड से तो आप रिट्रैक्ट कर लेगा। तो आपके अगर 100 डेटर्स हैं, 100 क्रेडिटर्स हैं, वो सब आपके मैप हो जाएंगे। तो जैसे कोई आपने स्कैन किया, अपने आप ऑटोमेटिकली एंट्री हो गई। तो आज चेंज बहुत फास्ट हो रहा है और उस फास्ट पेस में हम लोग पीछे नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए आज जो हमारे इंस्टीट्यूट का भी फंडामेंटल है वो ये है कि कैसे हम AI की बुनियाद के बेस पर हम अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली सो आज अकाउंटेंट्स की, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू कहाँ है, वो है वैल्यू एडेड सर्विसेज में। आज फ्रॉम प्योरली बीइंग अ अकाउंटेंट वी हैव टू इवॉल्व एज प्रोफेशनल्स हु आर होल्डिंग एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर एरियाज। अच्छा, हमको क्या लगता है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की खास बात होती है, हम लोग कुछ भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। आप GST दोगे, हम GST के बारे में पता है। आप ट्रांसफर प्राइसिंग दोगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में पता है। आप इंटरनेशनल टैक्स की बात, हम लोग इतना एक्सटेंसिव हम लोग पढ़े हैं। आप यूरोप में चले जाओगे, आप किसी इनकम टैक्स वाले से जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का है, उससे GST का सवाल पूछ लोगे, वो हाथ खड़े कर देगा। आप किसी ट्रांसफर प्राइसिंग वाले से VAT की बात करोगे, वो हाथ खड़े कर देगा, बिकॉज इट इज सो फ्रेगमेंटेड। तो द मोमेंट देयर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सब टॉपिक्स पे बात करता है, आप समझिए वो यूरोपियन कंपनीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यूरोपियन कंपनीज को वो टैलेंट वहां मिलता ही नहीं है। वहां जो लोकल अकाउंटेंट मिलेगा उसको सिर्फ एक चीज पता है। आज अगर जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके आती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डीप डाइव इनटू एवरीथिंग। सो वहां हमारी ह्यूज वैल्यू एडिशन है। और क्योंकि आज AI हम लोग बहुत एज एन इंस्टीट्यूट ऑल्सो उस पर काफी काम कर रहे हैं और यूरोप भी AI में जा रहा है, तो देयर इज अ राइट मैच ऑल्सो ऑफ वेयर बोथ द साइड्स आर कमिंग। तो आप लोग जो आपके बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो यूरोप जिन्होंने आज तक कंसीडर नहीं किया है, यूरोप इज अ गोल्डन, राइट नाउ इट्स द गोल्डन की इन द हैंड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. Chartered accountants don't realize this. And what I am trying to do in last couple of years is only to promote the opportunities that Europe offers for brilliant people like us, chartered accountants in India, because the thrust of the country, the thrust of the profession, the thrust of the institute is on exporting the services of chartered accountancy. So इसको आप लोग, क्योंकि यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, बहुत एक्टिवली परसू कीजिए। आपने अभी तक यूरोप परसू नहीं किया है तो। एंड आई एम सिटिंग इन नेदरलैंड्स, आई हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू इन वॉट एवर कैपेसिटी आई कुड हेल्प यू, ब्रांडिंग यू आउट, ब्रांचिंग यू आउट अक्रॉस पैन यूरोप। आज कौन कौन सी की मार्केट्स हैं जो यूरोप में इंपॉर्टेंट हैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए? तो जैसा मैंने कहा, यूके हैज बीन अ मार्केट, यूके इज द मार्केट एंड यूके विल रिमेन द मार्केट बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज का बेनिफिट है। एंड यूके की इकोनॉमी, वाइल इट इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, बट यूके हैज अ वेरी लार्ज बोथ कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट एंड यूके हैज वेरी लार्ज इकोनॉमी ड्रिवन basis. So UK is a powerhouse in sense of so far as business and money is concerned, and also technology. आज UK में कई ऐसी कंपनी हैं which are sitting on huge technology. So UK is a big business. It has been, it is there, and it will stay. UK की इकोनॉमी is going through a rough patch. See, अभी हो क्या रहा है? यूरोप की, because of the Russian war with Ukraine, the across Europe चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। यूरोप में बहुत सीवियर इन्फ्लेशन हो गया है बिकॉज ऑफ दिस वॉर क्राइसिस। जैसे वहाँ के एनर्जी प्राइसेस हैं, जैसे वहाँ के फूड प्राइसेस हैं। अब जैसे वहाँ मिल्क लेंगे तो एक लीटर 3 साल पहले, 4 साल पहले तक €1 पर लीटर मिल्क होता था। अब वो मिल्क का रेट हो गया है ऑलमोस्ट 1.8, 1.9 यूरोस पर लीटर। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट डबल। आप पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल यूज्ड टू बी 1.2, 1.3 euro per liter 3 years back. Today is going at 2.3, 2.4 euro per liter.
एग्जैक्टली, सो एनर्जी प्राइस, सो जब आपकी मेरी सारी बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज डबल हो गई, सो देन ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज डबल्ड अप, बट एट द सेम टाइम दे हैव ऑल्सो इंक्रीज द सैलरी. सो दैट मीन्स यू गेट अ हायर सैलरी, बट ठीक है ऑफसेट है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू मेक गुड मनी नेट. तो अब मैं आ रहा हूं दूसरी कंट्री पर आ रहा हूं, जैसे जर्मनी की बात करें आज जर्मनी की जो ग्रोथ रेट, इट्स कॉल्ड एज द ग्रोथ इंजन ऑफ यूरोप. जर्मनी इज कॉल्ड एज ग्रोथ इंजन ऑफ यूरोप. जर्मनी, इंडियन कंपनीज टोटल मिला के 3000 कंपनीज हैं जर्मन नेदरलैंड इंडिया कॉरिडोर में. आज इस कॉरिडोर के अंदर आप देखें तो हर एक कंपनी जर्मनी की इंडिया आना चाहती है और हर एक इंडियन कंपनी जर्मनी जाना चाहती है, क्योंकि जर्मनी में बिजनेस है. आज जर्मन में आज एक जर्मनी एक वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है इन यूरोप जहां आज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है. आज आप देखें मर्सिडीज, BMW, जितनी भी गाड़ियां हैं ये सब जर्मनी से हैं. ऑटोमोबाइल हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, एंड देयर लॉट ऑफ एरियाज इन विच जर्मनी इज एक्टिवली मैन्युफैक्चरिंग इन जर्मनी, बिकॉज 70 to 80% of manufacturing has moved out of Europe to China. Some has come to India, but now because of Corona, Europeans don't trust China anymore. So they are again looking at India. तो आप लोग क्योंकि सब प्रैक्टिस में हैं, तो आप लोग एक्टिवली ध्यान रखिए कि कौन कौन सी जर्मनी कंपनीज इंडिया आना चाह रही हैं. और हो सकता है आप लोग क्योंकि नॉर्थ इंडिया से ही हैं सारे, तो कहीं सोनीपत, पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, आई एम श्योर यू विल हैव रूट्स देयर, यूपी. तो उन सब जगहों पर जहां इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज हैं जर्मन कंपनीज की, आई सजेस्ट दैट यू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन हेल्पिंग देम आउट. नहीं तो जनरली क्या हो जाता है, ये बिजनेस पूरा बिग फोर पे चला जाता है, क्योंकि हम जो SMEs हैं या SMPs हैं, हम लोग सफिशिएंटली फोकस नहीं है कि ये बिजनेस को हम टैप कर सकते हैं. अब सवाल आता है इस बिजनेस को हम टैप कैसे करें. तो आज बिजनेस को सबसे इंपॉर्टेंट टैप करने के 4-5 जो रीजनल आइटम्स होते हैं वो बहुत समझना जरूरी है. जैसे सबसे पहले हर एक एम्बेसी में इंडिया के अंदर जितने भी यूरोपियन एम्बेसीज हैं उनमें सब में ट्रेड डेस्क है. तो यू स्टार्ट मेकिंग योर रिलेशनशिप विद द ट्रेड डेस्क इन यूरोपियन कंट्रीज इन इंडिया. सेकंड, हर एक कंट्री का एक लोकल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है. हाँ जी सर, आपका सवाल है. सो क्या होता है कि जैसे आप उनको ईमेल डाल सकते हैं. द फर्स्ट स्टार्ट इज द इंटरफेस कि इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड टेलिंग देम हु यू आर एंड व्हाट सर्विसेज यू ब्रिंग ऑन द टेबल एंड आस्किंग देम हाउ यू कुड. जैसे उनका कोई डेलीगेशन आया तो ये लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. पार्टिसिपेट इन दोज इवेंट्स बिकॉज यू हैव टू बी नोन टू देम. सी कई बार क्या होता है, आदमी को लगता है कि मैं आज जर्मनी कर लूँ, कल एस्टोनिया कर लूँ, परसों नेदरलैंड्स कर लूँ, परसों मैं UK. ऐसे काम नहीं होता है. एक आपको बहुत पहले फोकस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आज जो मुझे इंडिया यूरोप में काम करना है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिफाइन इज वेयर यू आर गोइंग टू फोकस. वेयर इज योर फोकस? सो आर यू अ प्रोफेशनल हु वांट्स टू गो एंड लिव इन यूरोप? आर यू अ प्रोफेशनल हु लिविंग इन इंडिया वांट्स टू सर्व यूरोप? Are you a professional who wants to work for a European company in India? Or are you a professional who wants to serve a European company in India? ये चार कैटेगरीज में आप सर्विसेज डिवाइड कर सकते हो. क्योंकि आज काफ़ी यूरोपियन कंपनीज हैं जो इंडियन बंदों को, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेती हैं इंडिया के अंदर, और हम जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस कर जाते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जो अवेयर नहीं है. तो मैंने 4 अपॉर्चुनिटीज़ बताई. आर यू क्लियर, ऑल क्लियर ऑन द 4 अपॉर्चुनिटीज़? मैं रिपीट करता हूँ. Indian chartered accountants wanting to work in Europe in jobs in Europe. That is one. Indian chartered accountants who wants to work in Europe as a professional, as a SME. Indian chartered accountants who wants to serve European companies coming to India as a SME, SMP. And then Indian chartered accountants who wants to work and job for European companies. Clear? चारों चीज क्लियर है. अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. और किस कंट्री पर आपको फोकस करना है वो ये कंट्रीज हैं. UK, जर्मनी, नेदरलैंड्स, मोल्टा एंड लक्समबर्ग. ये 5 कंट्रीज हैं जो टॉप 5 में मैं जिनको बोलूंगा कि ये 5 कंट्रीज हैं, आपको फोकस करना है तो आप इन पे फोकस करो. बिकॉज अब कंट्रीज लाइक एस्टोनिया वो कहते हैं कि भाई हम स्टार्टअप में बहुत आगे हैं, हम बहुत बेनिफिट्स देते हैं नई नई कंपनीज को, पर होता क्या है अभी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्केल का नहीं है जो हम इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंज्यूम कर सके. बट ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड है. अब मैं आपको जर्मनी का बताता हूँ. आज जर्मनी में इतनी हैवी शॉर्टेज है इन जनरल स्टाफ की, नॉट ओनली अकाउंटेंट्स. आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जर्मनी के साथ MOU साइन किया है जहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज सप्लाइंग 10,000 पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र टू जर्मनी. 10,000 पीपल. और वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब
आपको नर्सेस चाहिए, मतलब जो भी स्किल डेवलप्ड है, आपको लैब पीपल चाहिए, आपको अकाउंटेंट चाहिए, वी विल ट्रेन, वी विल मेक देम लर्न जर्मन। जर्मन के 2 कोर्स होते हैं, B1 B2। अब वो आप यहाँ 3-4 महीने में सीख सकते हो। इंडिया में बहुत इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, हमारा जो CA इंस्टीट्यूट है उसने भी जर्मन लैंग्वेज का कोर्स चालू करवाया है। तो अगर आप जर्मनी चाहते हो सीरियस मायने में काम करना या जर्मन कंपनीज के साथ काम करना, तो आप B1 B2 सीख लो। हाँ, तो उसमें क्या होगा, वीजा नहीं, आपको जॉब भी मिल जाएगी ना। अगर आपने B1 B2 कर ली है, आपको पता है यू विल गेट अ जॉब इन जर्मनी। नहीं, आपको रेसिडेंस परमिट मिलता है। 2 किस्म से आप यूरोप जा सकते हो। एक होता है बिजनेस वीजा पर, जो सिर्फ आप बिजनेस के लिए जा सकते हो, तो वो शॉर्ट टर्म वीजा होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म वीजा। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म वीजा लेना है तो आपको वहां का लोकल वर्क परमिट या जिसको रेसिडेंस परमिट बोलते हैं वो लेना पड़ेगा। तो व्हेन यू वांट टू हैव अ वर्क परमिट और रेसिडेंस परमिट, उसमें 2-3 क्राइटेरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सैलरी थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप क्वालिफाई करने चाहिए, और दूसरा आपको लैंग्वेज अगर आपको आती है तो दैट विल बी अ इनेबलर। अब नेदरलैंड्स में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि डच आपको आनी चाहिए, परंतु अगर आपने डच सीख लिया है तो आप थोड़े एज पे आ जाओगे। और ये महीने, 2 महीने, 3 महीने के कोर्स होते हैं जो आप डच लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो, बट इट कुड जनरेट स्टेलर रिजल्ट्स इन योर करियर। बिलीव मी, आई हैव सीन, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं 2017 का आपको बता रहा हूँ, मुझे 20 CA नहीं मिले थे CA चैप्टर बनाने में। जब हम जर्मनी का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बना रहे थे, मुझे 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढने में मुश्किल थी। आज जर्मनी में खुद में 200 से 250 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। आई मीन, मैं आपको बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट जितने बच्चे निकालता है CA के, उससे 10x की डिमांड है वर्ल्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, ऑल्सो इन इंडिया। परंतु देन यू हैव टू मेक अ डिफरेंशियल कि आपको करना क्या है। तो यू हैव टू, टाइम हैज कम फॉर अस टू प्ले स्मार्ट। हम लोग हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, बट स्मार्ट वर्क बहुत कम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम अगर स्मार्ट वर्क पे फोकस करें, और ये देखें साहब, आज हम लेवरेज, सी हर एक का एक आवरली रेट होता है। मैं अब मैं एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से बोल रहा हूं, हर एक बंदे का एक आवरली रेट होता है कि साहब मेरा आवरली रेट क्या है, मेरी फर्म का आवरली रेट एवरेज क्या है। अब टाइम वो आ गया है जब हम उन डायरेक्शन में सोचना चालू कर दें, और हम उस डायरेक्शन में सोचना चालू कर दें कि हम 1000, 2000, 3000 रुपयों में अपने आप को अंडर सेल नहीं करें। हम ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से हमने अपनी सर्विसेज सेल करें। पर उसके लिए जहां खामियां हैं वो हमें खामियां भी भरनी पड़ेंगी, वो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम फोकस्ड होके आज जो ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कैप्चर करें, फोकस होके। ऐसा नहीं आज हम 25 कंट्री में लॉस्ट हो जाएं, मालूम पड़े 1-2 साल के बाद इतनी मेहनत की, एक क्लाइंट भी हाथ में नहीं आया। वो नहीं होना चाहिए सिचुएशन, या जॉब अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं आई। तो ये सब 5-6 अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा, कंट्रीज हैं जहां आप फोकस कर सकते हैं। अब करियर अपॉर्चुनिटीज किस किस सेक्टर्स में हैं, वो मेरी लास्ट स्लाइड है, वो मेरी लास्ट स्लाइड है। आई एम रीचिंग देयर, आई एम रीचिंग। हाँ, वो मैं सब बताऊंगा, सब लिखा हुआ है। ऑल क्वेश्चंस। एक्सेलेंट आइडिया। तो उसमें क्या होगा, आज क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपका सजेशन है। हम क्या कर सकते हैं एज अ नेक्स्ट स्टेप कि पहले 3 या 4 कंट्रीज का एक राउंड टेबल करते हैं कि साहब ये 3-4 कंट्रीज बहुत क्रिटिकल हैं, और उनके इकोनॉमिक काउंसलर्स को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं साहब वाई नेदरलैंड्स, या वाई जर्मनी, या वाई फ्रांस, या वाई यूके। 3-3, 4-4 कंट्रीज का एक सीरीज चालू करते हैं। तो 1 साल के अंदर, क्योंकि यूरोप में तो 28-29 देश हैं, आप 8-10 जो सिलेक्टिव कंट्रीज हैं उन पर फोकस कीजिए, और वहां इन जनरल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर डेलिब्रेशन करो। सी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग कई बार छोटा सोचते हैं। ओके, हमें लगता है हमें अकाउंटिंग का काम मिल जाए, हम खुश हैं। स्टार्टिंग अकाउंटिंग के काम से नेसेसरीली आपको नहीं मिलेगी, वहां आपको मिलेगी बिजनेस से। आप उनसे बात करो, सर हम आपको बिजनेस में कैसे इनेबलर बन सकते हैं। टुडे फ्रॉम एन अकाउंटिंग इनेबलर
वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ एज अ बिजनेस इनेबलर। क्योंकि जब आप अकाउंटिंग इनेबलर की बात करते हो तो आप टेली की बात करते हो, आप जीएसटी रिटर्न्स की फाइल कर, किसी कंपनी के लिए वो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज जब मैं यूरोपियन कंपनी से मिलता हूँ, आदमी जाके बोल दूँ साहब मैं आपकी बुक कीपिंग कर लूंगा, वो बोलेगा वो तो इंडिया में बहुत, मुझे लोग बहुत ऐसे मिल जाएंगे, वो तो शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी जरूरत नहीं, वो तो बीकॉम वाली बंदा टेली सिखा दोगे, वो टेली तो बीकॉम ही कर लेगा मेरा, मुझे क्या जरूरत है सीए की। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है हमें रियलाइज करना कि हमारी जो पावर है और हमारा जो लेवरेज जनरेशन करने की कैपेसिटी है वो 100x है। अभी शायद हम x, 2x, 3x इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को एलिवेट करना है हमारे थिंकिंग पर, सो दैट आवर होल डायनेमिक्स चेंज इन द वे वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अ प्रैक्टिस। आज आप कुछ बोल रहे हैं सर? यस, 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 एब्सोल्युटली। सो हम लोग सर इंस्टीट्यूट देखिए, इंडिया में इंस्टीट्यूट एक ही चीज करता है, ऑब्वियसली इंडिया दे हैव देयर ओन मैंडेट जो इंडिया में करते हैं, बट इंस्टीट्यूट ने जो बहुत एक अच्छा काम किया है पिछले 10 बरस के अंदर, वो ये है कि इंटरनेशनल चैप्टर्स और रीजन्स पर फोकस किया है। क्यों किया है ऐसा? ऐसा क्यों किया इंस्टीट्यूट ने? इसलिए किया है जिससे कि आज कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेट से आज आप साउथ अफ्रीका जाना चाहो, या कल को आप नेदरलैंड जाना चाहते हो, या कल को आप फ्रांस जाना चाहते हो, तो एक आपको अपना भाई वहां बैठा हुआ मिल जाएगा, आपका भाई बहन कोई वहां रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस का हेड मिल जाएगा, और नॉट ओनली हेड, पूरी टीम है उनकी। आज आप ये देखिए, जहां चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में 7-8 लोगों की डेडिकेटेड टीम है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आज एटलीस्ट एक टॉकिंग पॉइंट है। आज मैं आपको बताता हूं जो सीए इंस्टीट्यूट ने अचीव किया है, हमारे आगे सीआईआई, फिक्की, एसोचैम कहीं खड़े नहीं होते हैं। मैं एसोचैम का यूरोप का चेयरमैन रहा हूं 7 साल। फिक्की के साथ मैंने बहुत, फिक्की और सीआईआई सबके साथ मैंने क्लोजली काम किया। इनके मिला के 5 कंट्रीज में भी एक बंदे से ज्यादा की प्रेजेंट नहीं है, एक बंदे की ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। हमारे हर कंट्री में 7-8 लोगों की तो मैनेजिंग कमेटी है। हम 70 शहरों में वर्ल्ड के प्रेजेंट हैं आज की डेट में। हम 50+ कंट्रीज में प्रेजेंट हैं आज की डेट में, और उन 50 कंट्रीज में हम चैप्टर्स के हिसाब से प्रेजेंट हैं। 45 चैप्टर्स हैं हमारे, हर एक चैप्टर्स में 8 मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, 350 लोग तो वो ही हैं। तो 1000 आदमी की आर्मी इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिश कर दी गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। हाँ, सो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आईसीआई की अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं? हर साल जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आईसीआई ऑर्गेनाइज करता है उसमें एक सेशन रखते हैं लोग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, और हम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो चैप्टर चेयरमैन हैं वो साथ में आते हैं, एंड वी टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज। और वो सबसे ज्यादा हाउसफुल सेशन होता है हम लोगों का, उसमें 500, 800, 1000 लोग तक बैठ के सुनते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और उससे फायदा लेते हैं। Sir, Vikas bhai, this time the global conference branded as GloPac would be happening in Delhi on in the end of January, 31st, 30th, 1st February at Yashobhumi, this Dwarka. तो आप अभी से अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लें। लास्ट ईयर वो गांधीधाम में हुई थी, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4000 की गैदरिंग थी। इस बार दिल्ली में हो रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गैदरिंग ऑफ 7 to 10,000। एंड अगेन यू नो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के जो हमारे चैप्टर्स चेयर्स हैं एंड द ऑफिस बेयरर्स हैं, दे वुड बी कमिंग ग्लोबल चैप्टर्स के। So therein you will get a good opportunity to meet all of them, to interact with them and to understand the opportunities in their respective chapters. So you can block your calendar right now. It's towards the end, 30, 31st January and 1st February. Thank you. थैंक यू। एंड गौरव भाई, आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें बहुत एम्फोसिस डालें अपॉर्चुनिटीज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आउटसाइड इंडिया का जो सेशन होगा, वी हैव टू मेक श्योर इट हैज टू बी द बेस्ट वन, बिकॉज आई थिंक दैट कुड रियली, तो यूरोप ऑफर्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। या आपके क्लाइंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, अगेन ऑफर्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। क्यों? बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन। आपका एक, जब आप लोग इंडिया में प्रैक्टिस करते हो तो आई एम श्योर आपने अपना आवरली रेट निकाला होगा, 2000 रुपये प्रति घंटा
3,000 रुपये प्रति घंटा, कोई सीनियर लोग 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 25-50,000 रुपये तक जा सकते हैं. तो आई एम श्योर ऑल ऑफ अस नो what is our hourly rate that we are charging to client. Now the moment आप उस 2-3, आमतौर पे मैंने जो देखा है वो इंडिया में 2, 3, 4, 5, 6,000 रुपये होता है. The moment you go to Europe, the hourly rates game changer. क्योंकि वहाँ hourly rate 100, 120, 200, इनफैक्ट वहाँ पार्टनर्स जो नॉर्मल आमतौर पे एक नॉर्मल फर्म का भी पार्टनर होगा वो 200-300 यूरो आमतौर पे चार्ज कर सकता है प्रति घंटा. सो इफ दैट इज द काइंड ऑफ गैप which you can charge in Europe vis-a-vis in India, obviously you would want to then work for Indian clients. Going to Europe or working for Europe. Sir, आपका question था? नहीं, okay. So, because of the competitive nature of remuneration, आज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इंडिया में स्टार्टिंग में 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख की आपको जॉब मिलती है. बट अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको ठीक एक्सपोजर है, तो आप यूरोप में जाके 35-40 हज़ार यूरो, 45 हज़ार यूरो तक की सैलरी आराम से ले सकते हैं. और वो जो डिफरेंशियल है 40 हज़ार की यूरो की सैलरी आप कंपेयर करते हैं, आज ऑलमोस्ट 93-94 का यूरो है. वी आर टॉकिंग ऑफ 35-40 लाख रुपीज ऑफ स्टार्टिंग सैलरी. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कुड ईजिली रीच 80,000-90,000 यूरोस. 5 से 6 साल का आप एक्सपीरियंस लेके चलना, तो प्लस अ गुड लिविंग. सो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द हाई कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन, यूरोप बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक मार्केट. उसके बाद आज सभी जगह यूरोप में ईजिंग रेगुलेशंस हो रहे हैं. पहले क्या होता था कि आज मोबिलिटी फ्रॉम इंडिया टू यूरोप वाज ऑलवेज चैलेंजिंग. कोई वीज़ा नहीं देता था. नेदरलैंड चले जाओ, यूके चले जाओ, जर्मन चले जाओ, अब सब जगह द मैसिव प्रॉब्लम वाज वीज़ास, बिकॉज इन लोगों को अपना इमिग्रेशन कंट्रोल और चैनलाइज रखना है. बट बिकॉज आज इतनी बड़ी शॉर्टेज है, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है. आज आप इनकी पॉपुलेशन देखें, पूरे यूरोप के अंदर 300-350 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है. बट टुडे दो डोंट हैव सफिशिएंट अकाउंटेंट्स ऑल अक्रॉस. आप यूके से चालू करो, आयरलैंड की बात करो, लक्समबर्ग की बात करो, जर्मनी की बात करो, स्पेन की बात करो, अप टू द कंट्रीज लाइक रोमेनिया, पोलैंड, बुल्गारिया. इन कंट्रीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हैवी शॉर्टेज है, बिकॉज इकोनॉमीज बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर गई, पॉपुलेशन उतनी फास्ट पेस पे ग्रो नहीं की, और पॉपुलेशन में भी अकाउंटेंट्स उस पेस पे ग्रो नहीं किए. तो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज डेफिसिट between the growth of the economy and because of the lack of infrastructure of accountants, there is a big gap today. आज क्या हो रहा है कि countries like South Africa are playing a role कि वो अपने accountants को place करते हैं. आज हमारे CA इंस्टीट्यूट का मैंडेट है अंडर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाइयों और बहनों को आउटसाइड इंडिया भेजना है. आज CA इंस्टीट्यूट हैज़ बीन गिवन द सेम अकॉर्ड ऑफ वॉट अ FICCI or an ASSOCHAM or a CII is given in terms of treating so far as the trading is concerned, so far as giving certifications are concerned. ये 2 साल पहले हुआ था, which has put ICAI on a completely different pedestal. And because it has been done, obviously we as a chartered accountants have also been benefited by that. But issue ये है कि हम लोगों को चीज़ पता नहीं है कि how chartered accountants can really engagingly and actively play a role in enhancing the business cooperation and thus also enhancing their own chances of making money on the European market. तो easing regulation. फिर बात करते हैं यूनिफाइड मार्केट स्टैंडर्ड्स. आप जब यूरोप में जाते हो, बिकॉज यूरोपियन यूनियन एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है. जैसे आप देखेंगे वहाँ VAT है, तो VAT पूरा हार्मोनाइज है यूरोप का. आज बेशक 28-29 कंट्रीज आते हैं यूरोपियन यूनियन में, बट उनका EU अक्रॉस VAT हार्मोनाइज है. तो अगर आपने EU VAT पढ़ लिया तो बेसिकली आपने 28-29 कंट्रीज की नॉलेज हासिल कर ली. ऐसा नहीं है कि आपको जर्मनी का VAT अलग याद करना पड़ेगा, स्पेन का अलग याद करना, क्योंकि कई बार वो मिसकंसेप्शन होता है कि यार मैं अगर यूरोप चला जाता हूँ, यूरोप में प्रैक्टिस करने की सोचता हूँ, कुछ भी करने की सोचता हूँ, तो मुझे 30 देशों का सिस्टम याद करना पड़ेगा. तो VAT हो गया, कस्टम्स हो गया, ये सब हार्मोनाइज्ड है. एंड ऑल्सो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस. और आप जितने भी आज देखेंगे जो OECD की गाइडलाइंस हैं टैक्स के ऊपर, ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर, आज हम BEPS की बात करते हैं, पिलर 1, पिलर 2 की बात करते हैं, ये सब यूनिफाइड हो गया है आज की डेट में. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ऑफ दिस यूनिफाइड मार्केट स्टैंडर्ड्स, इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू प्रैक्टिस इन यूरोपियन रीजन. देन जैसा मैंने कहा, हाँ जी, मैं दे रहा हूँ. वो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली.
सर होता क्या है कि आज आई नो, तो वो भी मैं बताता हूं। सो ये आपके जो सब सारे सवाल हैं, इसमें मैं आगे जैसे चलूंगा अपनी स्लाइड्स में, इन सभी क्वेश्चंस को आपको आंसर मिल जाएंगे स्लाइड्स के अंदर। सो आज जो मैंने बताया हाई डिमांड ऑफ प्रोफेशनल्स क्यों है, आज ऐसा मतलब ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया वहां 5 साल में कि एकदम से स्पॉट आ गई है हाई डिमांड फॉर प्रोफेशनल्स। और वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ दिस गैप इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी vis-a-vis the lack of growth in the infrastructure of accountants has led to this. Yes. Yes, sir. I welcome Honorable Chairman of NIRC, C. Abhin Agarwal ji. I request him to kindly join us on the dais. Let's have a round of applause for Abhinav bhai. So I will take up all these questions. I will take up all these questions. And now the very, very important thing is digital transformation. आज जैसा हमको मालूम है, आज हमारे इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट सर हैं इंडिया में, रंजीत जी, उनका भी फोकस ये है कि हम एआई को कैसे बढ़ावा दें आईसीआई में। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब इंस्टीट्यूट हैज गॉन सो अग्रेसिव ऑन इंश्योरिंग कि हम लोग, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट बी लेफ्ट आउट or be left behind on the AI subject. So today this has become a massive subject कि आज जो भी हम कर रहे हैं उसमें AI का यूज आ गया है। आज हम यूरोप में जाते हैं, हमें लगता है कि यूरोप हमसे बहुत आगे है। कई बार मिथ होते हैं कि यार यूरोप में आज AI बेस्ड अकाउंटिंग होगी, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आज जब मैंने अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग की प्रैक्टिस चालू की थी 2012 में, मैं कई यूरोपियन फर्म्स के पास गया था और जिनके पास भी गया उन्होंने कहा विकास जी हमें अकाउंटेंट्स की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तो जो स्कैनिंग मशीन्स हैं वही अकाउंटिंग का काम कर देती हैं। तो एक टाइम वो था, बट आज मैं देखता हूं कि बाय एंड लार्ज अकाउंटिंग सिस्टम्स पर जा रही है। तो आज जो हमारा रोल है वो भी इवॉल्व हो गया है। आज पहले हम लोग अकाउंटिंग करते थे, उसके बाद हम लोग टैक्स फाइलिंग करते थे और उसके बाद ऑडिट करते थे। ये 3 स्टेप्स में हम लोग काम करते थे। आज क्या हो गया है, अकाउंटिंग ईआरपी बेस्ड हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सिस्टम्स लेके आ गए हो, और एज वी विल गो अलोंग द वे इन नेक्स्ट 3, 4, 5 years अकाउंटिंग विल बी कंप्लीटली मशीन बेस्ड। आपके सिस्टम्स, इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ। अब यूरोप में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर आपने जो ले रखा है बैंक इसका अकाउंटिंग का, उसमें आप डायरेक्ट लिंकेज लगा देते हो बैंक स्टेटमेंट की। आप उसमें क्या करते हो, उसमें आप आपके जो वेंडर्स हैं, जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको स्कैन से आप एक बता देते हो अगर ये इनवॉइस आएगा इस बार कोड से तो आप रिट्रैक्ट कर लेगा। तो आपके अगर 100 डेटर्स हैं, 100 क्रेडिटर्स हैं, वो सब आपके मैप हो जाएंगे। तो जैसे कोई आपने स्कैन किया, अपने आप ऑटोमेटिकली एंट्री हो गई। तो आज चेंज बहुत फास्ट हो रहा है और उस फास्ट पेस में हम लोग पीछे नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए आज जो हमारे इंस्टीट्यूट का भी फंडामेंटल है वो ये है कि कैसे हम एआई की बुनियाद के बेस पर हम अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली सो आज अकाउंटेंट्स की, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू कहाँ है, वो है वैल्यू एडेड सर्विसेज में। आज फ्रॉम प्योरली बीइंग अ अकाउंटेंट वी हैव टू इवॉल्व एज प्रोफेशनल्स हु आर होल्डिंग एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर एरियाज। अच्छा, हमको क्या लगता है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की खास बात होती है, हम लोग कुछ भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। आप जीएसटी दोगे, हम जीएसटी के बारे में पता है। आप ट्रांसफर प्राइसिंग दोगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में पता है। आप इंटरनेशनल टैक्स की बात, हम लोग इतना एक्सटेंसिव हम लोग पढ़े हैं। आप यूरोप में चले जाओगे, आप किसी इनकम टैक्स वाले से जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का है, उससे जीएसटी का सवाल पूछ लोगे, वो हाथ खड़े कर देगा। आप किसी ट्रांसफर प्राइसिंग वाले से वीएटी की बात करोगे, वो हाथ खड़े कर देगा, बिकॉज इट इज सो फ्रेगमेंटेड। तो द मोमेंट देयर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सब टॉपिक्स पे बात करता है, आप समझिए वो यूरोपियन कंपनीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूरोपियन कंपनीज को वो टैलेंट वहां मिलता ही नहीं है। वहां जो लोकल अकाउंटेंट मिलेगा उसको सिर्फ एक चीज पता है। आज अगर जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके आती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डीप डाइव इनटू एवरीथिंग, सो वहां हमारी ह्यूज वैल्यू एडिशन है। और क्योंकि आज एआई हम लोग बहुत एज एन इंस्टीट्यूट ऑल्सो उस पर काफी काम कर रहे हैं और यूरोप भी एआई में जा रहा है, तो देयर इज अ राइट मैच ऑल्सो ऑफ वेयर बोथ द साइड्स आर कमिंग। तो आप लोग जो आपके बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो यूरोप जिन्होंने आज तक कंसीडर नहीं किया है, यूरोप इज अ गोल्डन, राइट नाउ इट्स द गोल्डन की इन द हैंड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स।
Chartered accountants don't realize this. And what I am trying to do in last couple of years is only to promote the opportunities that Europe offers for brilliant people like us, chartered accountants in India, because the thrust of the country, the thrust of the profession, the thrust of the institute is on exporting the services of chartered accountancy. So इसको आप लोग, क्योंकि यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, बहुत एक्टिवली परसू कीजिए. आपने अभी तक यूरोप परसू नहीं किया है तो. And I am sitting in Netherlands. I have a global presence. I will be more than happy to help all of you in whatever capacity I could help you, branding you out, branching you out across pan Europe. आज कौन कौन सी की मार्केट्स हैं जो यूरोप में इंपॉर्टेंट हैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए? तो जैसा मैंने कहा, यूके हैज बीन अ मार्केट, यूके इज द मार्केट एंड यूके विल रिमेन द मार्केट बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज का बेनिफिट है. एंड यूके की इकोनॉमी, वाइल इट इज गोइंग थ्रू a rough patch, but UK has a very large, both consumption-driven market, and UK has very large economy-driven basis. So UK is a powerhouse in sense of so far as business and money is concerned, and also technology. आज UK में कई ऐसी कंपनी हैं which are sitting on huge technology. So UK is a big business. It has been, it is there, and it will stay. यूके की इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच. सी अभी हो क्या रहा है यूरोप की, बिकॉज ऑफ द रशियन वॉर विद यूक्रेन, द अक्रॉस यूरोप चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं. यूरोप में बहुत सीवियर इन्फ्लेशन हो गया है बिकॉज ऑफ दिस वॉर क्राइसिस. जैसे वहाँ के एनर्जी प्राइसेस हैं, जैसे वहाँ के फूड प्राइसेस हैं. आप जैसे वहाँ मिल्क लेंगे तो एक लीटर 3 साल पहले 4 साल पहले तक €1 पर लीटर मिल्क होता था. अब वो मिल्क का रेट हो गया है ऑलमोस्ट 1.8-1.9 यूरोस पर लीटर. हाँ, इट्स ऑलमोस्ट डबल. आप पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल यूज्ड टू बी 1.2-1.3 यूरो पर लीटर 3 years बैक. टुडे इज गोइंग एट 2.3-2.4 यूरो पर लीटर. एग्जैक्टली. सो एनर्जी प्राइस, सो जब आपकी मेरी सारे बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज डबल हो गई, सो देन ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज डबल्ड अप. बट एट द सेम टाइम दे हैव ऑल्सो इंक्रीज द सैलरी. So that means you get a higher salary, but ठीक है, offset है, but at the end of the day you make good money, net. तो अब मैं आ रहा हूँ दूसरी कंट्री पर आ रहा हूँ. जैसे जर्मनी की बात करें आज जर्मनी की जो ग्रोथ रेट, इट्स कॉल्ड एज द ग्रोथ इंजन ऑफ यूरोप. जर्मनी इज कॉल्ड एज ग्रोथ इंजन ऑफ यूरोप. जर्मनी, इंडियन कंपनीज टोटल मिला के 3000 कंपनीज हैं जर्मन नेदरलैंड इंडिया कॉरिडोर में. आज इस कॉरिडोर के अंदर आप देखें तो हर एक कंपनी जर्मनी की इंडिया आना चाहती है और हर एक इंडियन कंपनी जर्मनी जाना चाहती है, क्योंकि जर्मनी में बिजनेस है. आज जर्मन में आज एक जर्मनी एक वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है इन यूरोप जहां आज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है. आज आप देखें मर्सिडीज, BMW, जितनी भी गाड़ियां हैं ये सब जर्मनी से हैं. ऑटोमोबाइल हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, एंड देयर लॉट ऑफ एरियाज इन विच जर्मनी इज एक्टिवली मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी, बिकॉज 70 to 80% of manufacturing has moved out of Europe to China. Some has come to India, but now because of Corona, Europeans don't trust China anymore. So they are again looking at India. तो आप लोग क्योंकि सब प्रैक्टिस में हैं, तो आप लोग एक्टिवली ध्यान रखिए कि कौन कौन सी जर्मनी कंपनीज इंडिया आना चाह रही हैं. और हो सकता है आप लोग क्योंकि नॉर्थ इंडिया से ही हैं सारे, तो कहीं सोनीपत, पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, आई एम श्योर यू विल हैव रूट्स देयर, यूपी. तो उन सब जगहों पर जहां इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज हैं जर्मन कंपनीज की, आई सजेस्ट दैट यू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन हेल्पिंग देम आउट. नहीं तो जनरली क्या हो जाता है, ये बिजनेस पूरा बिग 4 पे चला जाता है, क्योंकि हम जो SMEs हैं या SMPs हैं, हम लोग सफिशिएंटली फोकस नहीं हैं कि ये बिजनेस को हम टैप कर सकते हैं. अब सवाल आता है इस बिजनेस को हम टैप कैसे करें. तो आज बिजनेस को सबसे इंपॉर्टेंट टैप करने के 4-5 जो रीजनल आइटम्स होते हैं वो बहुत समझना जरूरी है. जैसे सबसे पहले हर एक एम्बेसी में इंडिया के अंदर जितने भी यूरोपियन एम्बेसीज हैं उनमें सब में ट्रेड डेस्क है. तो यू स्टार्ट मेकिंग योर रिलेशनशिप विद द ट्रेड डेस्क इन यूरोपियन कंट्रीज इन इंडिया. सेकंड, हर एक कंट्री का एक लोकल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है. हाँ जी सर, आपका सवाल है. सो क्या होता है कि जैसे आप उनको ईमेल डाल सकते हैं. द फर्स्ट स्टार्ट इज द इंटरफेस कि इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ and telling them who you are and what services you bring on the table and asking them how you could. जैसे उनको कोई डेलीगेशन आया तो ये लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं,
participate in those events because you have to be known to them. See, कई बार क्या होता है, आदमी को लगता है कि मैं आज जर्मनी कर लूँ, कल एस्टोनिया कर लूँ, परसों नेदरलैंड्स कर लूँ, परसों मैं यूके, ऐसे काम नहीं होता है। एक आपको बहुत पहले फोकस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आज जो मुझे इंडिया यूरोप में काम करना है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिफाइन इज वेयर यू आर गोइंग टू फोकस, वेयर इज योर फोकस. सो आर यू अ प्रोफेशनल हु वांट्स टू गो एंड लिव इन यूरोप? आर यू अ प्रोफेशनल हु लिविंग इन इंडिया वांट्स टू सर्व यूरोप? Are you a professional who wants to work for a European company in India? Or are you a professional who wants to serve a European company in India? ये चार कैटेगरीज में आप सर्विसेज डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि आज काफ़ी यूरोपियन कंपनीज हैं जो इंडियन बंदों को, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेती हैं इंडिया के अंदर, और हम जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस कर जाते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जो अवेयर नहीं है. तो मैंने 4 अपॉर्चुनिटीज़ बताई. आर यू क्लियर, ऑल क्लियर ऑन द 4 अपॉर्चुनिटीज़? मैं रिपीट करता हूँ. Indian chartered accountants wanting to work in Europe in jobs in Europe. That is one. Indian chartered accountants who wants to work in Europe as a professional, as a SME. Indian chartered accountants who wants to serve European companies coming to India as a SME, SMP. And then Indian chartered accountants who wants to work and job for European companies. Clear? चारों चीज क्लियर है. अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस कंट्री पर आपको फोकस करना है वो ये कंट्रीज हैं: यूके, जर्मनी, नेदरलैंड्स, माल्टा एंड लक्समबर्ग. ये 5 कंट्रीज हैं जो टॉप 5 में मैं जिनको बोलूंगा कि ये 5 कंट्रीज हैं, आपको फोकस करना है तो आप इन पे फोकस करो. बिकॉज अब कंट्रीज लाइक एस्टोनिया, वो कहते हैं कि भाई हम स्टार्टअप में बहुत आगे हैं, हम बहुत बेनिफिट्स देते हैं नई नई कंपनीज को, पर होता है क्या, ज्यूम कर सके. बट ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जहां सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड है. अब मैं आपको जर्मनी का बताता हूं. आज जर्मनी में इतनी हैवी शॉर्टेज है इन जनरल स्टाफ की, नॉट ओनली अकाउंटेंट्स. आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जर्मनी के साथ MOU साइन किया है, जहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज सप्लाइंग 10,000 पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र टू जर्मनी. 10,000 पीपल. और वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब आपको नर्सेस चाहिए, मतलब जो भी स्किल डेवलप्ड है, आपको लैब पीपल चाहिए, आपको अकाउंटेंट चाहिए, वी विल ट्रेन, वी विल मेक देम लर्न जर्मन. जर्मन के 2 कोर्स होते हैं, B1, B2. अब वो आप यहाँ 3-4 महीने में सीख सकते हो. इंडिया में बहुत इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, हमारा जो CA इंस्टीट्यूट है उसने भी जर्मन लैंग्वेज का कोर्स चालू करवाया है. तो अगर आप जर्मनी चाहते हो सीरियस मायने में काम करना या जर्मन कंपनीज के साथ काम करना, तो आप B1, B2 सीख लो. हाँ, तो उसमें क्या होगा, वीजा नहीं, आपको जॉब भी मिल जाएगी ना. अगर आपने B1, B2 कर ली है, आपको पता है यू विल गेट अ जॉब इन जर्मनी. नहीं, आपको रेसिडेंस परमिट मिलता है. 2 किस्म से आप यूरोप जा सकते हो. एक होता है बिजनेस वीजा पर, जो सिर्फ आप बिजनेस के लिए जा सकते हो, तो वो शॉर्ट टर्म वीजा होता है. एक होता है लॉन्ग टर्म वीजा. तो आपको अगर लॉन्ग टर्म वीजा लेना है तो आपको वहां का लोकल वर्क परमिट, या जिसको रेसिडेंस परमिट बोलते हैं, वो लेना पड़ेगा. तो व्हेन यू वांट टू हैव अ वर्क परमिट और रेसिडेंस परमिट, उसमें 2-3 क्राइटेरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो सैलरी थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप क्वालिफाई करनी चाहिए, और दूसरा आपको लैंग्वेज अगर आपको आती है तो दैट विल बी अ इनेबलर. आज नेदरलैंड्स में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि डच आपको आनी चाहिए, परंतु अगर आपने डच सीख लिया है तो आप थोड़े एज पे आ जाओगे. और ये महीने, 2 महीने, 3 महीने के कोर्स होते हैं जो आप डच लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो, बट इट कुड जनरेट स्टेलर रिजल्ट्स इन योर करियर. बिलीव मी, आई हैव सीन, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं 2017 का आपको बता रहा हूँ, मुझे 20 CA नहीं मिले थे CA चैप्टर बनाने में. जब हम जर्मनी का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बना रहे थे, मुझे 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढने में मुश्किल थी. आज जर्मनी में खुद में 200 से 250 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. आई डोंट थिंक सो. आई मीन, मैं आपको बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट जितने बच्चे निकालता है CA के, उससे 10x की डिमांड है वर्ल्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, ऑल्सो इन इंडिया. परंतु देन यू हैव टू मेक अ डिफरेंशियल कि आपको करना क्या है. तो यू हैव टू, टाइम हैज कम फॉर अस टू प्ले स्मार्ट. हम लोग हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, बट स्मार्ट वर्क बहुत कम करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम अगर स्मार्ट वर्क पे फोकस करें, और ये देखें साहब, आज हम लेवरेज, हर एक का एक आवरली रेट होता है. मैं अब मैं एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से बोल रहा हूं, हर एक बंदे का एक आवरली रेट होता है कि साहब मेरा आवरली रेट क्या है, मेरी फर्म का आवरली रेट एवरेज क्या है. अब टाइम वो आ गया है जब हम उन डायरेक्शन में सोचना चालू कर दें, और हम उस डायरेक्शन में सोचना चालू कर दें कि हम 1,000, 2,000, 3,000 रुपयों में अपने आप को अंडर सेल नहीं करें. हम ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से हमने अपनी सर्विसेज सेल करें.
पर उसके लिए जहां खामियां हैं वो हमें खामियां भी भरनी पड़ेंगी, वो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम फोकस्ड होके आज जो ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कैप्चर करें, फोकस होके। ऐसा नहीं आज हम 25 कंट्री में लॉस्ट हो जाएं, मालूम पड़े साल 2 साल के बाद इतनी मेहनत की एक क्लाइंट भी हाथ में नहीं आया, वो नहीं होना चाहिए सिचुएशन, या जॉब अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं आई। तो ये सब 5-6 अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा, कंट्रीज हैं जहां आप फोकस कर सकते हैं। अब करियर अपॉर्चुनिटीज किस किस सेक्टर्स में हैं, वो मेरी लास्ट स्लाइड है, वो मेरी लास्ट स्लाइड है। आई एम रीचिंग देयर, आई एम रीचिंग। हाँ वो मैं सब बताऊंगा, सब लिखा हुआ है। ऑल क्वेश्चंस। एक्सेलेंट आइडिया। तो उसमें क्या होगा, आज क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपका सजेशन है, हम क्या कर सकते हैं एज अ नेक्स्ट स्टेप कि पहले 3 या 4 कंट्रीज का एक राउंड टेबल करते हैं कि साहब ये 3-4 कंट्रीज बहुत क्रिटिकल हैं, और उनके इकोनॉमिक काउंसलर्स को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं साहब वाई नेदरलैंड्स या वाई जर्मनी या वाई फ्रांस या वाई यूके, 3-3, 4-4 कंट्रीज का एक सीरीज चालू करते हैं। तो 1 साल के अंदर, क्योंकि यूरोप में तो 28-29 देश हैं, आप 8-10 जो सिलेक्टिव कंट्रीज हैं उन पर फोकस कीजिए और वहां इन जनरल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर डेलिब्रेशन करो। सी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग कई बार छोटा सोचते हैं, ओके हमें लगता है हमें अकाउंटिंग का काम मिल जाए हम खुश हैं। स्टार्टिंग अकाउंटिंग के काम से नेसेसरीली आपको नहीं मिलेगी, वहां आपको मिलेगी बिजनेस से। आप उनसे बात करो सर हम आपको बिजनेस में कैसे इनेबलर बन सकते हैं। टुडे फ्रॉम एन अकाउंटिंग इनेबलर वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ एज अ बिजनेस इनेबलर, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग इनेबलर की बात करते हो तो आप टैली की बात करते हो, आप जीएसटी रिटर्न्स की फाइल कर, किसी कंपनी के लिए वो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज जब मैं यूरोपियन कंपनी से मिलता हूँ और मैं जाके बोलूँ साहब मैं आपकी बुक कीपिंग कर लूंगा, वो बोलेगा वो तो इंडिया में बहुत, मुझे लोग बहुत ऐसे मिल जाएंगे, वो तो शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी जरूरत नहीं, वो तो बीकॉम वाली बंदा टैली सिखा दोगे वो टैली तो बीकॉम ही कर लेगा मेरा, मुझे क्या जरूरत है सीए की। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है हमें रियलाइज करना कि हमारी जो पावर है और हमारा जो लेवरेज जनरेशन करने की कैपेसिटी है वो 100x है। अभी शायद हम x, 2x, 3x इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को एलिवेट करना है हमारे थिंकिंग पर, सो दैट आवर होल डायनेमिक्स चेंज इन द वे वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द प्रैक्टिस। आज आप कुछ बोल रहे हैं सर? यस 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 एब्सोल्युटली। सो हम लोग सर इंस्टीट्यूट देखिए इंडिया में इंस्टीट्यूट एक ही चीज करता है, ऑब्वियसली इंडिया दे हैव देयर ओन मैंडेट जो इंडिया में करते हैं, बट इंस्टीट्यूट ने जो बहुत एक अच्छा काम किया है पिछले 10 बरस के अंदर वो ये है कि इंटरनेशनल चैप्टर्स और रीजन्स पर फोकस किया है। क्यों किया है ऐसा क्यों किया इंस्टीट्यूट ने? इसलिए किया है जिससे कि आज कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेट से आज आप साउथ अफ्रीका जाना चाहो या कल को आप नेदरलैंड जाना चाहते हो या कल को आप फ्रांस जाना चाहते हो, तो एक आपको अपना भाई वहां बैठा हुआ मिल जाएगा, आपका भाई बहन कोई वहां रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस का हेड मिल जाएगा, और नॉट ओनली हेड पूरी टीम है उनकी। आज आप ये देखिए जहां चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में 7-8 लोगों की डेडिकेटेड टीम है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आज एटलीस्ट एक टॉकिंग पॉइंट है। आज मैं आपको बताता हूं जो सीए इंस्टीट्यूट ने अचीव किया है, हमारे आगे सीआईआई, फिक्की, एसोचैम कहीं खड़े नहीं होते हैं। मैं एसोचैम का यूरोप का चेयरमैन रहा हूं 7 साल, फिक्की के साथ मैंने बहुत, फिक्की और सीआईआई सबके साथ मैंने क्लोजली काम किया। इनके मिला के 5 कंट्रीज में भी एक बंदे से ज्यादा की प्रेजेंट नहीं है, एक बंदे की ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। हमारे हर कंट्री में 7-8 लोगों की तो मैनेजिंग कमेटी है। हम 70 शहरों में वर्ल्ड के प्रेजेंट हैं आज की डेट में, हम 50+ कंट्रीज में प्रेजेंट हैं आज की डेट में, और उन 50 कंट्रीज में हम चैप्टर्स के हिसाब से प्रेजेंट हैं। 45 चैप्टर्स हैं हमारे, हर एक चैप्टर्स में 8 मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, 350 लोग तो वो ही हैं
तो 1000 आदमी की आर्मी इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिश कर दी गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आईसीआई की अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं? हर साल जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आईसीआई ऑर्गेनाइज करता है उसमें एक सेशन रखते हैं लोग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, और हम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो चैप्टर चेयरमैन हैं वो साथ में आते हैं एंड वी टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज। और वो सबसे ज्यादा हाउसफुल सेशन होता है हम लोगों का, उसमें 500, 800, 1000 लोग तक बैठ के सुनते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और उससे फायदा लेते हैं। Sir, Vikas bhai, this time the global conference branded as GloPac would be happening in Delhi on in the end of January, 31st, 30th, 1st February at Yashobhumi, this Dwarka. तो आप अभी से अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लें। लास्ट ईयर वो गांधी धाम में हुई थी, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4000 की गैदरिंग थी। इस बार दिल्ली में हो रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गैदरिंग ऑफ 7 to 10,000। एंड अगेन यू नो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के जो हमारे चैप्टर्स चेयर्स हैं एंड द ऑफिस बेयरर्स हैं, दे वुड बी कमिंग ग्लोबल चैप्टर्स के। So therein you will get a good opportunity to meet all of them, to interact with them and to understand the opportunities in their respective chapters. So you can block your calendar right now. It's towards the end, 31st January and 1st February. Thank you. थैंक यू। एंड गौरव भाई, आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें बहुत एम्फोसिस डालें अपॉर्चुनिटीज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आउटसाइड इंडिया का जो सेशन होगा, वी हैव टू मेक श्योर इट हैज टू बी द बेस्ट वन, बिकॉज आई थिंक दैट करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, आज बैंक्स, investment banking institutions, corporate finance, huge opportunities for chartered accountants in those institutions like BNP Paribas हो गया, ABN AMRO Bank हो गया, ING हो गया, Deutsche Bank हो गया। I know so many chartered accountants working into all the departments of these banks. मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, you will see them across. M&A में भी आपको मिल जाएगा, रिटेल बैंकिंग में भी आपको मिल जाएगा, everywhere you will find chartered accountants. Innovation and technology, आज कई कंपनीज ऐसी हैं जहाँ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। अब जैसे जोहो की बात करें, आज जोहो यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली इस्टेब्लिश्ड है, और आज जोहो में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं। फ्रैक्टर एनालिटिक्स अनदर कंपनी है जहाँ ह्यूज नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वर्किंग। सिनेक्रॉन अनदर कंपनी, एंड दीज आर ऑल $1 billion ग्रुप, आई एम टेलिंग यू। और ये इंडियन ग्रुप्स हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं यूरोप के अंदर। और आज हमें लगता है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंट्स और फाइनेंस के डोमेन में नहीं, आज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉजिस्टिक्स में है। एक कंपनी है दावत राइस, LT फूड्स, उनके अंदर कम से कम 5 यूरोप में जो 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो उनके रॉटरडैम की फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, जो कि सिर्फ लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हैं। तो इवन जो दायरा है हम लोगों का, वो दायरा भी कंप्लीटली आज चेंज हो गया है, वो इवॉल्व हो गया है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना भी कि अपॉर्चुनिटीज भी क्या क्या हैं। तो अपॉर्चुनिटीज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में ह्यूज और इमेंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। सर अगेन उसमें स्किल है ना, अभी हमने आपने बात की थी ना कि स्किल होनी चाहिए। आपकी सवाल था, आपकी पॉइंट था कि आज अकाउंटिंग नहीं होगी तो आगे क्या स्किल, हमें स्किल्ड, तो आपके ही सवाल आपने खुद ही जवाब दे दिया कि क्या ये जस्टिफाइड, ऑफ कोर्स जस्टिफाइड है। जहां पे स्किल एप्लीकेशन हो रहा है आपकी नो हाउ का, तो इट इज नॉट बैड ना। आज प्रोक्योरमेंट टू पे में कहां लीकेजेस हैं सिस्टम में, कहां पिल्फरेजेस हैं, हमसे बेहतर कोई उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। सो दैट इज वेयर द वैल्यू इज। ESG प्रोफेशनल्स, आज ESG का एक लॉ पास हो गया जो कि इंडिया में भी आ गया है, और ग्लोबली आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। यूरोप बहुत आगे सस्टेनेबिलिटी में, और इंडिया भी अब पीछे नहीं रह रहा है, यूरोप के साथ कदम पे कदम चला के मिल रहा है। तो क्योंकि आज इंडिया में भी आज सब जगह ESG की बातें हो रही हैं, ऑडिट्स हो रही हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसमें अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर रहे हैं। तो अगेन यूरोप इज अ huge country because every country would fall under ESG, and again they are not sufficient professionals who can supply to the corporates or to big four or to the accounting firms. चौथे टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंडियन कॉर्पोरेट्स में। आज जैसा मैंने बताया आपको, कोई भी इंडियन कॉर्पोरेट ऐसी नहीं होगी जिसका यूरोप में ऑफिस नहीं होगा। आज सभी कॉर्पोरेट्स के ऑफिस हैं, और सभियों को अपने भाई बहन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। दे ऑलवेज प्रेफर अ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट कि यार विकास भाई आप हमें इंडियन सीए दिलवा दो। किसी का ऑफिस होगा पोलैंड में, बोलेगा मुझे आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट दिलवा दो जो मेरा पूरा फाइनेंस, ऑपरेशंस,
पूरा जो मेरी वेयर हाउसिंग एंड टू एंड पूरा मैनेज कर ले, दे आस्क फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टुडे, बिकॉज एक सीए ही ऐसा बंदा होता है जो सब कुछ एंड टू एंड कर सकता है। आप एक एमबीए को बिठाल के, नथिंग अगेंस्ट एमबीएस, बट आप एमबीए को बोलोगे आप अकाउंटिंग कर लो, फाइनेंस देख लो, टैक्स देख लो, वो हाथ खड़े कर देगा। वो हो सकता है सिर्फ वेयर हाउसिंग देख लेगा, सप्लाई देख लेगा, मार्केटिंग देख लेगा, परंतु आप बोलोगे यार तुम फाइनेंस, अकाउंट, टैक्स देखो, कंप्लायंस देखो, वो नहीं देख पाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। वो सिर्फ स्किल सीए में है, आप उसको प्रोक्योरमेंट पर लगा लो, सप्लाई पर लगा लो, फाइनेंस पर लगा लो, ट्रेजरी में लगा लो, आईटी में लगा लो, इनोवेशन में लगा लो, एआई में लगा लो, सब जगह सीए आ सकता है। नहीं, सी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यू कैन पुट देम एनीवेयर, एंड आई थिंक जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा, हमें अगर एक्सपोजर ठीक मिल जाए, अपॉर्चुनिटीज ठीक बता दी जाए, तो लगता है वी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, एंड वी आर कॉन्करिंग द वर्ल्ड। मैं फ्यूचर टेंस में बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टुडे आर कॉन्करिंग द वर्ल्ड एज वी स्पीक। मतलब आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड जो हम शायद एक नॉर्मल जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट आउट ऑफ डेस्क होगा वो सोच नहीं सकता है। करेक्ट। सो एब्सोल्युटली। सो इंडियन कॉर्पोरेट्स के साथ फिर है आउटसोर्सिंग। काफ़ी सीए फर्म्स हैं यूरोप में जिनके साथ आप लोगों की, जिनकी एसएमई और एसएमपीज हैं, आप लोग अपना आउटसोर्सिंग में उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो। फॉरेन फर्म्स हैं, आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू डू दैट इन माय नेक्स्ट स्लाइड्स। नाउ अब आ गया हाउ टू सीज द अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटीज क्लियर है? अपॉर्चुनिटीज क्या है यूरोप में? अपॉर्चुनिटीज क्या है? यस और नो? पीछे वालों को क्लियर है नहीं है? यस और नो? अपॉर्चुनिटीज इन यूरोप। अब हम बात करते हैं कि इन अपॉर्चुनिटीज को हमें सीज कैसे करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना फोकस डायरेक्शन सेट करना है कि मुझे करना क्या है। क्या मुझे यूरोप में जाके जॉब करनी है, या अगर आपका बच्चा है, बेटा बेटी, उसको यूरोप में भेजना है जिसने सीए किया हुआ है, पहले आपको वो माइंडसेट पे क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो चीज क्लियर नहीं है, आपको एक्शनेबल रिजल्ट जो आप चाहते हो अचीव करना, वो अचीव नहीं होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टारगेट, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू। जो मैंने 4 आपको बताई थी अपॉर्चुनिटीज, उसमें से पहले ये करो कि साहब मुझे इंडिया से यूरोप जाना है जॉब के लिए। अगर आपको जॉब के लिए जाना है तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे जॉब किस कंट्री में करनी है। जब आपने ये तय कर लिया कि मुझे जॉब इस कंट्री में करनी है, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि उसमें घुसने के लिए मुझे क्या करना है, प्री रिक्विजिट मेरा क्या है। जब आपने प्री रिक्विजिट तय कर लिया, मुझे मालूम पड़ गया प्री रिक्विजिट क्या है, फिर उसको आपको इंश्योर करना है कि प्री रिक्विजिट आपने अप्लाई कर लिया। एंड देन यू, द लास्ट पॉइंट नंबर 5 इज अटैक द मार्केट, अटैक द अपॉर्चुनिटी। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, हम पहले अटैक द अपॉर्चुनिटी करते हैं बिना सोच के हम कहां तीर चला रहे हैं। हमने कहा बस तीर चला दो, हमें जर्मनी में लगाना है निशाना, फ्रैंकफर्ट की कंपनी अपॉर्चुनिटी आई है, लगा दो निशाना। स्पेन की बहुत बड़ी कंपनी ने अपॉर्चुनिटी आई है इंफ्रा में, लगा दो निशाना। काम ऐसे नहीं होगा। जो मैंने 5 चीजें बताई हैं वो आप प्लीज राइटफुली उसको फॉलो करोगे, नोबडी कैन स्टॉप यू इन अचीविंग व्हाट यू विश टू अचीव। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आप सीज करना चाहते हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी है किसी के साथ। अब आउटसोर्सिंग की बात करें, कई लोगों का सवाल होता है आउटसोर्सिंग कैसे करें हम। तो क्या पहले आपके पास उसकी कॉम्पिटेंस है? क्या आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? डू यू अंडरस्टैंड दैट मार्केट डायनेमिक्स? आज कई लोगों ने यूरोप से अकाउंटिंग की, आउटसोर्सिंग की अपॉर्चुनिटी चालू की, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, एंड दे ऑल स्ट्रगल। व्हाई दे स्ट्रगल? ऑफ 2 things. 1, they are not prepared for outsourcing, they don't have that competence. 2, they don't know how to connect to the right person. और पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला वाला है कनेक्ट तो कैसे भी कैसे मिल जाएगा आपको। पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप कल्चर समझते हो यूरोप का। वहाँ 5 बजे के बाद बंदे चले जाते हैं, आप उनको 5:30 6 बजे फ़ोन करोगे, 7 बजे फ़ोन करोगे, अगले दिन अपसेट हो जाएगा, वो आपसे बात भी नहीं करेगा। हम इतने परसिस्टेंट होते हैं, हम उसको रोज़ मैसेज भेजेंगे कि भाई तू मेल देख ले, तू अपॉर्चुनिटी देख ले, तू हमें काम दे दे, वो बंदा इरिटेट हो जाएगा। कई बार कल्चरल गैप बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी होती है वो हाथ से निकल जाती है। तो ये समझना कि जिस मार्केट में आप जा रहे हो उसका कल्चर क्या कहता है।
थोड़ा उसके बारे में अपने आप को प्रिपेयर कर लो। आज आप जर्मनी का काम करना चाहते हो तो जर्मनी के क्या रूल्स हैं अकाउंटिंग के, आज जर्मनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, क्या आपने पढ़ाई की है उसके बारे में? जर्मनी का वीएटी फाइलिंग्स कैसे होते हैं, क्या आपने पढ़ा है उसके बारे में? जर्मनी में अगर आज किसी कंपनी में पेरोल है, 5 लोग काम करते हैं, क्या आपको पेरोल पता है जर्मनी का कैसे ऑपरेट होता है? तो यू हैव टू फर्स्ट बी क्लियर कि आपको करना क्या है। तो आपने कहा मुझे जर्मनी में अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग करनी है, तो वो फोकस चलो उसमें, जर्मनी में कौन कौन सा मुझे लॉ पता होना चाहिए, तो वो आपके दिमाग में, जहन में क्लियरिटी होनी चाहिए। एक सवाल ये उठा था, क्या हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं? यस, यू कैन डू सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। 1 साल 2 साल के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। आप नेदरलैंड चले जाओ, 1 साल का मास्टर्स कर लो, सर्टिफिकेशन हो जाएगा आपका वहां के नेदरलैंड के हिसाब से। आप यूके चले जाओ, यूके में 1 साल का प्रोग्राम कर, यूके में तो खैर हमारा एमओयू भी है, हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमओयू और एमओई है यूके के साथ, तो इंडियन सीए इंस्टीट्यूट का विद ICAEW, कि आप अगर यहाँ के सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप वहाँ पे 2-3 एग्जाम्स दो और देने के बाद यू विल बी एन यूके चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज नेदरलैंड्स में मैंने MRA करा रखा है नेदरलैंड्स के अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट के साथ। तो एटलीस्ट टुडे जहाँ 10 साल पहले कोई सीए को जानता नहीं था यूरोप में, आज बाय एंड लार्ज पीपल आर अवेयर व्हाट इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर, एंड थैंक्स टू द चैप्टर्स एंड ओवरसीज रीजनल ऑफिसेस दैट आर एस्टैब्लिश्ड इन ऑल दोस कंट्रीज। सेकंड है अडेप्टेशन एंड लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा कि आपको लर्न क्या करना है, आप डिलीवर क्या करने वाले हो। आप सिर्फ ये सोच के जाओगे कि मुझे फ्रांस में जाके नौकरी करनी है विदाउट नोइंग कि वहाँ का अडेप्टेशन क्या है, वहाँ की लर्निंग क्या है, तो वो काम में से नहीं चलेगा। आपको अडेप्ट करना पड़ेगा फ्रांस में रिक्वायरमेंट क्या है, तब आपको जाके वहाँ जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो भी आप देखना चाहते हैं। फिर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको, नेटवर्किंग विद इंडस्ट्री ग्रुप्स, कि कई लोग, हम लोग क्या करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोग हेजिटेट करते हैं यार हम किसी भी नेटवर्किंग इवेंट में कैसे जाएंगे। मैंने कई बार देखा है कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये नहीं पता है कि अगर हम आज अपॉर्चुनिटी में जाएंगे नेटवर्किंग करने तो बात क्या करनी है। तो नेटवर्किंग भी अपने आप में एक स्किल है जो आई थिंक ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नीड टू लर्न, बिकॉज आज हम जो लेवरेज, जो मैंने x और 100x का बताया, हमारी वैल्यू 100x, हम जनरेट करते हैं x या जनरेट करते हैं 2x। अब x से जो 100 की जर्नी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है नेटवर्किंग का। आप कॉन्फिडेंट हो, आप नेटवर्कर हो, आप सेल्स पर्सन हो, एनी कंपनी यू टेक इट, ग्लोबली कोई भी कंपनी का सीईओ होगा वो सेल्स पर्सन होगा। तो व्हाई नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट? अगर आप SMPs हो तो आप क्यों नहीं बना सकते भाई अपनी कंपनी 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की प्रैक्टिस क्यों नहीं बना सकते आप? हम क्यों 5, 10, 20, 25, 50 लाख करोड़ की प्रैक्टिस पर सिमट जाते हैं? क्यों? क्योंकि आज जो हमारा x, जो 100x की जिसकी वैल्यू है, हम जनरेट करते हैं x या 2x, एंड बिगेस्ट रोल प्लेस बिकॉज वी आर नॉट गुड सेल्स पीपल। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें आउट ऑफ द क्लोजेट निकलना। हम लोग क्लोजेट में सब बैठ जाते हैं, हमें लगता है पता नहीं हम किसी से बात करने जाएंगे कोई क्या कह देगा। और आज हम अपनी पिच सेल्स कैसे करें? आज हमें सेल्स पिच अकाउंटिंग सर्विसेज नहीं करनी है, आज आपको एंगेज करना है डिस्कशन में किसी भी कंपनी के साथ। आज जर्मन कंपनी के साथ बात करो, उनके साथ ये बात करो कि भाई क्या बिजनेस है आपका, आप इंडिया में क्या प्लान्स हैं, आप इंडिया आए हो, इंडिया क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हो, JV कर रहे हो, टाई अप कर रहे हो, क्या करने वाले हो आप? वो फिर आपको बताएगा साहब मैं JV लगाने वाला हूँ। तो आपने क्या, अच्छा JV लगा रहे हो, किसके साथ लगा रहे हो, वो नाम नहीं बताएगा, बोलेगा ठीक है क्या क्या आपने 4-5 एरियाज देखे JV के? तो नहीं देखे यार मैंने तो एरियाज। इमीडिएटली कुछ उसके दिमाग में ऐसा डाल दो, वो बोलेगा भाई यार इस बंदे से मुझे बात करनी है। बट पहले उसका डायमेंशनल समझो, उसका डायमेंशन क्या है। आप फटैक से, हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं कार्ड देने की, कि हम भाई फटैक से अपना कार्ड दे दिया कि उसके पास कार्ड पहुंच जाए बस, और उसका हमें कार्ड मिल जाए। हम जनरली ये कोशिश करते हैं कार्ड मिल जाए और कार्ड पहुंच। सबसे खराब नेटवर्किंग है। मैंने 20 साल पहले जब नेटवर्किंग चालू की थी, मैं एक इंडिया में इवेंट में आया, GRI का रियल एस्टेट का इवेंट था, कम से कम 300 CEOs से मिला, बट मैं एक से भी नहीं मिला। 300 CEOs से मिला क्योंकि मेरे पास 300 कार्ड थे, डिब्बे में जाके चले गए। बट मैंने जाके रियलाइज किया मैं जानता तो किसी को भी नहीं हूं। मैं बस उस तेजी में था कि मेरे कार्ड खत्म हो जाएं और 300 के कार्ड्स आ जाएं। यूरोप से PwC में आया था बिजनेस क्लास, तो एक खर्चा करके आया था। एंड उस वक्त प्रैक्टिस की स्टार्टिंग में PwC में था, तो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग एट PwC मुझे था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स लेने, क्योंकि मेरा सोल कॉन्सेप्ट कार्ड का था। उसके बाद रियलाइज कि 300 कार्ड तो मिल गया, बट एक भी आदमी से मुलाकात नहीं हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, जब नेटवर्किंग करते हो
बहुत सॉलिड तरीके से, आप भली से 2 लोगों से मिलो, किसी भी इवेंट में आते हो 3 लोगों से मिलो, बट उनसे मिलो, एंड देन दे रिमेंबर यू, एंड देन डोंट इमीडिएटली शो योर नीड के साथ आप हमें अकाउंटिंग का काम दे दो, टैक्स का काम दे दो, सॉरी, जस्ट गेट इनटू अ कॉन्वर्सेशन. Conversation, engagement will lead to business, not other way around. A business will not come without a conversation and engagement. तो networking with industry groups में जाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, you have to be one, you have to realize you are not X, you are 100X. अगर हम पहले वो चीज़ डिसाइड कर लें कि हमारी वैल्यू 100X है, आज हम 10X चार्ज करें तो हम तो भैया 10% पर प्ले करेंगे अपनी लाइफ में. सी हर एक प्रोफेशनल की लाइफ में 25 से 30 साल ऐसे होते हैं जब प्रोफेशनल बहुत तेजी से काम करता है, और उस 30 साल की भी जर्नी में पहले के 15 साल बहुत क्रिटिकल होते हैं, बाद में 15 साल उस पर फाउंड बिल्ड करता है जो उसने पहले 15 साल में इस्टेब्लिश किया है. जो मुझे लग रहा है आप लोगों को, कुछ मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग फर्स्ट 15 साल वाले जोन में है, कुछ हैं लेटर 15 साल वाले जोन में. तो ये मैसेज मुझे लगता है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस जिनकी इस्टेब्लिश्ड है. वाई नॉट डाइवर्सिफिकेशन? आज बिग फोर कैसे ग्रो करता है? डाइवर्सिफिकेशन से ग्रो करता है. तो जब आप नेटवर्किंग की बात करते हो तो क्यों नहीं हम डेनमार्क, क्यों नहीं हम जर्मनी, क्यों नहीं हम बेल्जियम, क्यों नहीं हम यूके में जाके आज से पहल चालू करें. सो जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं, जो मैंने बताया चेंबर्स हैं, आपका किसी का सवाल था हम इंडस्ट्री ग्रुप तक पहुंचे कैसे, आपका सवाल था. अब मैं बोलता हूँ वो लोकल चेंबर्स हैं, लोकल चेंबर्स पर कोई रोक नहीं है. आज इटालियन इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसका मेंबर बनिए ना, कोई रोक नहीं है उस पर. 6-7 हज़ार रुपये की मेंबरशिप है. इंडो जर्मन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनिए, 8-10 हज़ार रुपये की मेंबरशिप फीस है. ये एक एक चेंबर्स 10-10, 15-15 इवेंट्स करवाते हैं साल में, जहां आप कम से कम 200-500 कंपनी से मिल सकते हो. सो कंसीडर दैट डूइंग इट. माइग्रेशन फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स, हर एक कंट्री में आज माइग्रेशन के रूल्स अलग हैं, रेगुलेशंस अलग हैं, बहुत आसान करते चले जा रहे हैं. जैसे यूरोप ने चालू किया यूरोप ब्लू कार्ड स्कीम. तो ब्लू कार्ड में अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी बेसिक क्राइटेरिया है, यू कैन अप्लाई फॉर यूरोपियन ब्लू कार्ड. और ब्लू कार्ड अप्लाई कर लो, इन अ वे आपको रेसिडेंस परमिट मिल गया, फिर आप किसी भी कंट्री में जॉब अप्लाई कर सकते हो. यूरोपियन ब्लू कार्ड अलाउज यू टू मोबिलाइज एंड नेविगेट ऑल द यूरोपियन कंट्रीज. ऐसे ही फ्रांस ने, ऐसे ही जर्मनी ने, ऐसे ही नेदरलैंड ने, सब नेदरलैंड ने निकाला हाईली स्किल्ड माइग्रेंट कार्ड. HSM उनका होता है, अगर आप हाईली स्किल्ड माइग्रेंट हो तो आपको फटेक से वीजा मिल जाएगा. आज उन स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो यहाँ अगर स्टार्टअप्स में हैं या जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, एक स्टार्टअप वीजा होता है. तो अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस. इट इज जस्ट दैट वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू गेट आउट एंड वी हैव टू नो वेयर वी आर हिटिंग द नील. देन गेट अलोंग विद ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स, जो बिग फोर हैं या जो BDO हैं, GT हैं, उनके साथ आप एंगेजमेंट चालू करो. आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं आप उनसे एक लर्निंग, जस्ट फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव. एंड आज आप देखोगे कि ये लोग BDO, GT, in addition to Big Four, why they have become so big? Because Europe has played a predominant role. Traditionally ये लोग सब US based firms हैं और US based ही इनके businesses हैं. आज आप देखेंगे इंडिया के अंदर a firm like ENY, a firm like PwC, their turnover is in thousands of crores. Thousands of crores. And कहाँ से आ रही है वो turnover? आज सारे के सारे बैक ऑफिसेस यूरोपियन कंपनीज के ये लोग इस्टेब्लिश करें इंडिया में इन हाउस. तो अगर आज हम लोग राइटफुली इनसे सीखें कि ये लोग क्या करें, बेस्ट लर्निंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, एंड उसको इंप्लीमेंट करें. सो विद दिस वन मोर थिंग आई वांट टू से, जब प्लानिंग की बात आती है कि कैसे प्लान करना है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर विच कंट्री यू आर डूइंग. सबसे पहले कंट्री डिसाइड करो. एक बार आपने कंट्री डिसाइड कर ली, फिर उसमें मुझे जॉब करनी है या मुझे प्रैक्टिस करनी है वो डिसाइड करो. एक बार वो डिसाइड कर लिया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से इस्टेब्लिश करो. एक बार इंफ्रा आपने उसके हिसाब से बिल्ड कर लिया, अपनी प्लानिंग अपने आप को जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से इस्टेब्लिश कर ली, देन यू अटैक द अपॉर्चुनिटी. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, देयर इज नो वे एंड देयर इज नथिंग दैट कैन कम इन योर वे दैट कैन स्टॉप. You own a multi-million dollar firm in India, a multi-million dollar firm in Europe. There is nothing. The world is out and out for chartered accountants from India. With this, thank you so much for giving me patient hearing. I will be here in this session after for lunch and other sessions. So if there is any questions I could address during this offline meeting, happy to help. And we are there to support you globally. We are there to support you in Europe.
connect with us on LinkedIn, connect with us on, because I keep on posting lot of social media content. I keep on generating lot of social media content on opportunity for chartered accountants. और किसी भी प्रकार से अगर मैं किसी भी आप लोगों के कहीं पर भी आपकी फैमिली के, आपके फ्रेंड्स के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं काम आ सकूं, it would be an honor to serve the profession and the fraternity. Thank you so much. Thank you, Gaurav bhai, for having me here. It has been a wonderful show since morning, and compliments for organizing this. Thank you. So if you have any question, उसके हिसाब से establish करो. एक बार इंफ्रा आपने उसके हिसाब से बिल्ड कर लिया, अपनी प्लानिंग अपने आप को जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से establish कर ली, then you attack the opportunity. And believe me, friends, there is no way and there is nothing that can come in your way that can stop you own a multi-million-dollar firm in India, a multi-million-dollar firm in Europe. There is nothing. The world is out and out for chartered accountants from India. With this, thank you so much for giving me patient hearing. I will be here in this session after for lunch and other sessions. So if there is any questions I could address during this offline meeting, happy to help. And we are there to support you globally. We are there to support you in Europe. Connect with us on LinkedIn. Connect with us because I keep on posting lot of social media content. I keep on generating lot of social media content on opportunity for chartered accountants. और किसी भी प्रकार से अगर मैं किसी भी आप लोगों के कहीं पर भी आपकी फैमिली के, आपके फ्रेंड्स के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं काम आ सकूं, it would be an honor to serve the profession and the fraternity. Thank you so much. Thank you, Gaurav bhai, for having me here. It has been a wonderful show since morning, and compliments for organizing this. Thank you. so if you have any questions, I think आप देखेंगे मैं रह के पार्ट टाइम करने हैं. नहीं, प्रैक्टिस में रहने के लिए देखिए आपको क्लाइंट्स के पास रहना इंपॉर्टेंट है. तो आपको ज्योग्राफी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप यहाँ इंडिया से बैठ के आप सोचो मैं यू गो, हाँ वो कर सकते हो आप, बट देन फिर आपके पीछे जो कंप्लायंसेस हैं आपकी टीम होनी चाहिए फिर इंडिया में. हाँ वो ठीक है, अगर आपकी टीम वहाँ है वो कर सकते हो, वो पॉसिबिलिटी है. कई सीए करते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हो आप. बट देखिए मतलब कुछ भी चीज करो मुझे लगता है यू हैव टू गिव 100% टू इट, बिकॉज कहीं ना कहीं एक मिस्टेक भी होगी, एक नॉन कंप्लायंस होगा किसी क्लाइंट का तो आपकी शामत है. तो मतलब एक जस्ट फ्रॉम अ मोर ऑफ अ सैनिटी चेक यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन द टॉप. बहुत अच्छा स्कोप है. एलएलएम कर सकते हैं बच्चे, एलएलएम बाहर से कर सकते हैं. एलएलएम बाहर से एक पर्टिकुलर टॉपिक में होता है. तो जैसे आपने बात की कि मुझे एविएशन करना है तो वो एविएशन में 1 साल एविएशन पढ़ेंगे. मैंने एलएलएम किया था इंटरनेशनल टैक्स में. सी क्या है कि सबसे आसान इन सब कंट्रीज में यूके होगा. 1 इंग्लिश है, 2 आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड है और मतलब अपने ही लोग हैं. नहीं बट ठीक है. सी आप देखिए अब आपको कंपटीशन नहीं करना है तो आप फिर नेदरलैंड्स आ सकते हो, जर्मनी आ सकते हो. बट देन आप जर्मनी में B1 B2 कर लो, आप जर्मनी आ सकते हो.